चलो अनिकेत, वी आर लाइव। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। कलकत्ता में कहाँ से? सर मौलाली से सर। ये कहाँ पे भाई, साउथ में नॉर्थ में, नहीं नहीं किधर सर, है? एकदम एकदम सेंट्रल में सर। सेंट्रल में कहाँ? वेर 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 एग्जैक्टली इन सेंटर? सर एस्प्लेनेड के पास सर। स्प्रिंट, तो दैट इज ओके। तो ये तो बिल्कुल सेंटर में आ गए, बिल्कुल चौरंगी के बिल्कुल साथ में आकर के। मतलब सर सियालदह स्टेशन से सर एकदम पास में। सियालदा के बिल्कुल पास में। हाँ ठीक है। तो अच्छा, आई थॉट सियालदा वाज इन नॉर्थ। नो, सियालदा इज नॉट नॉर्थ, इट्स सेंट्रल। it's central, but closer to north, isn't it? Because from या central इट्स क्लोजर north, टू I नॉर्थ। think it's हाँ walking, because I walked from north Calcutta to Sialda many times. In fact, it ओके। was closer. चलो बढ़िया। और अभी क्या आपका हाउस द वेदर लाइक देयर? दिल्ली हैज गुड वेदर राइट नाउ बिकॉज वी हैड बिट ऑफ रेन डे आफ्टर दिवाली. सो सर इट इज आवर लाइक सर द नाइट्स आर कूल बट द डे इज वेरी वार्म। really, so Delhi is डेज pleasant आर वेरी right वार्म। now because of the rain, and because of the rain, the pollution is also very less. So that difference we have now. चलिए अनिकेत, नमस्कार। बताइए क्या, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, व्हाटएवर, बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, हाँ regarding sir the हाँ letters of Gumnami Baba sir. Sir, what हाँ is the sir logistics behind the Gumnami Baba letters sir? So हाँ so who was the letter addressed हाँ to? Who was कीप carrying it up? I'm listening, keep speaking, I'm listening. हाँ Sir, who was carrying the letters up to Gumnami Baba? Who was receiving the letters from the postman? Because the level of secrecy you are always saying that he maintained, now delivering the letters and taking the letters. Like for example, when Gumnami Baba is sending the letters to Povitra Mohan Roy, was he हम्म sending to Povitra Mohan Roy's address directly? Because if you told that he's being kept under the scanner, so it will be very easy to not detect it then. always, no, there were different modalities. Usually it was Pavitra. Bhagwanji used to write letters. Sometimes they were on a normal letter, sometimes they used to Indian letters also. But usually the carrier of Pavitra himself. Pavitra used to go there once in a year, or maybe others would go, but usually Pavitra he was the most trusted. So Pavitra would bring all the letters to Calcutta and he will physically distribute them. So, but sometimes he has used post also. But all the secret letters, which were very highly classified, he always gave in hand to Pavitro, usually to Pavitro. And Pavitro would come to Calcutta and would hand over these letters to the others. And sir, did you all find any sir links? Sir, who was this personal carrier delivering these letters? No, Pavitra was one of them. Pavitra was used to carry all the top secret letters to Calcutta. Physically, Otherwise, sir. everybody is going. So, for example, see, people used to go. Sometimes they used to go in a group. So then he can always exchange communication and all that. Suppose Sunil Das is visiting at that point of time, so he will give something to Sunil Das, and then Sunil Das will come to Calcutta and give it to Pavitra. But what I gather, what I understand is that Pavitra was usually the person who used to carry letters. But normally they used to all come together, all three or four of them. But Pavitra used to come very often. He was the main Okay, person. that is how the So letters were you exchanged. can think just one way. Pavitra was the one who used to carry maximum letters, and not all of them were sent by post. Many were hand written by hand, and they were sent through hand. Okay. But the usual normal letters in which there's nothing specific, and I think by that time he also knew, the government knew about him. Okay. So वो है. Acha. Second question is related to the death. Before we proceed further, I'll make two couple of points. Number one is that मैं आज के बाद अपने सेशन रोज रात को 10 बजे, मतलब रोज नहीं, मतलब वीक में मेरा टारगेट है कि वीक में 3 या 4 दिन मैं आऊँगा लाइव रात को. तो उसमें फ़ायदा है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकता हूँ. वीक में 3 या 4 दिन का मैं टारगेट मेरा रखना है, और होगा 10 बजे. तो टाइम मैंने 10 बजे फिट कर दिया. इट कैन बी मंडे, ट्यूजडे, एनी डे, बट इट विल बी 10 o'clock. नंबर वन. नंबर टू, मैं 2.5 घंटा नहीं बोलूँगा. वो 2.5 घंटे का मैं वो ठीक नहीं चल रहा है. तो मैंने टाइम सेट कर दिया 1 घंटे का. तो आज हम लोग 10 बजे स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग 11 बजे के आसपास, मतलब रफली, मैं ऐसा नहीं कि 11 बजे काट दूंगा किसी को. आप ये लेके चलो कि घंटा भर रफली, अनलेस अनटिल कोई बहुत ज़्यादा एंगेजिंग ना हो जाए, मैं इसको 11 सवा 11 के पहले निपटा दूंगा. लेकिन उसका एडवांटेज है कि मैं कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा. मेरा कोशिश होगी कि मैं वीक में 3-4 बार आऊँगा. और अभी बीच में हम लोग गेस्ट को भी लेकर आएंगे. तो नॉट एवरी डे विल बी अ सेशन विद यू पीपल, बट कुड बी अ गेस्ट ऑल्सो. अभी आई एम मोस्ट लाइकली, अभी मैं तिलक दत्ता जी को, जर्मनी में जो है हमारे, वो जिन्होंने अभी किताब लिखी है महाकाल वाली, तो वो तिलक जी को मैं शायद कल, मेरा प्लान है उनको लाने का करके. तो मैं आपसे रोज कोशिश करूंगा वीक में 3 या 4 दिन आप लोगों से बातचीत करूं. लेकिन मेरा ये फ्रेम जो है 1 घंटे का होगा, रफली 1 घंटे का.
तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे एक दिन में, तो अलग अलग दिन में रखेंगे, एंगेज रखेंगे आप लोगों को उस सेंस में. Yes, Aniket, what is the second question? The second question is, sir, relating, sir, the death mystery, sir. Hmm. In 1985 वाला, sir. Is there a Sir, mystery? आपने, sir. No, Is there sir. a mystery? So I have a query, sir. हाँ. Sir, my observation here is, sir, India Post का सर मैंने सर वेबसाइट सर मैंने चेक किया सर. सर हाँ. इंडिया पोस्ट का सर दो तरह का सर स्टैंप होता है. एक सर रेगुलर स्टैंप सर जो सर चिपकाने के लिए सर, हाँ. और सर एक सर कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप सर. हाँ. सर 1991 तक सर नेताजी का नाम का सर कोई सर पोस्टेज स्टैम्प नहीं निकला है सर. सारे के सारे सर आजाद हिंद गवर्नमेंट, आजाद हिंद का तो पहले निकला, 25th ईयर में निकल गया था पंडित जी के होते होते. 25th ईयर में निकला था सर. और भी सर जो सर निकला है सर, वहां पे सर नेताजी का सर एक सर रफ स्केच निकलता था, पर उसमें सर आजाद हिंद गवर्नमेंट लिखता था. क्योंकि सर जब तक किसी का डेथ ना हो सर, आप कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प या कोई भी पोस्टेज स्टैम्प निकाल नहीं सकते सर. सर वो 1991 में लेकर आया सर. सो क्या सर यहाँ पे सर एक कैश है सर? नहीं, वो कैश नहीं, वो तो गवर्नमेंट पहले क्यों निकालती. प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट तो ऑलवेज ये कैन क्लेम कर सकते हैं कि हम लोग को डेथ के कंट्रोवर्सी थी इसलिए हम लोग नहीं निकाला. उसके बाद में 1980 बाद में 91 में जाकर के मेरे ख्याल से वो कोर्ट में केस भी हो गया था आपका भारत रत्ना को लेकर के, तब भी गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर किया था, जो शायद उन्होंने तब निकाल दिया होगा. तो आई थिंक उस पर हम लोग को ज्यादा प्रूव नहीं कर सकते कुछ करके. और उनके गवर्नमेंट के दिमाग में ये कंट्रोवर्सी थी. वो तो नरसिम्हा राव का नोट मैंने किताब में डाला भी था बिग कवर अप में. तो उसने बोला था कि पीएम ये भी बोलते हैं कि अभी इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेदर ही इज डेड और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन यू शुड लीव राइट नाउ. तो हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे आते थे ये डिसीजन ले लिया. ऑब्वियसली पब्लिक के गवर्नमेंट के दिमाग में ये कहानी थी कि वो जिंदा है, मरे नहीं है, उनको डाउट था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे हम कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक हमारा आपका स्पेकुलेशन है. आई कैन आल्सो एग्री विद यू कि यस गवर्नमेंट को मालूम था क्योंकि जिंदा है, तो वो डर के मारे कॉमेमोरेटिव नहीं कर रहे थे. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. बट द प्रॉब्लम इज कि इसको हम लेके इसको हम एक एज ए प्रूफ नहीं समझ सकते सर. इसमें सर एक और गवर्नमेंट से मिल जाए सर. इसमें सर एक और एंगल आता है सर. 1991 में सर आपने सर जो वॉर क्रिमिनल वाला एंगल आपने जो बताया, क्योंकि सर जब सर हम लोग सर उसके बाद 1991 के बाद सर रेगुलर पोस्टेज स्टैम्प नेताजी का नाम का सर निकलना शुरू कर गया सर. 10 रुपए का भी, 5 रुपए का भी. ओके सर. वहां पे सर क्योंकि सर पोस्टेज स्टैम्प सर बाहर भी सर उसको लगा के भेज सकते हैं सर. उसको सर इंग्लैंड और यूके में भी सर अगर लोग सर लगा के सर भेज रहा था सर. तब एक सर प्रॉब्लम आता है सर कि वहां पे कि सर तब तो सर वॉर क्रिमिनल रहा सर. ये तो सर जब सर फॉरेन कंट्रीज में सर लेटर्स जब भेजते हैं सर, उसमें सर वो सर यूनाइटेड नेशंस पोस्टल सर्विस के थ्रू जाता है सर. वो डायरेक्ट नेशन टू नेशन एक्सचेंज नहीं होता है सर. उसमें तो सर यूनाइटेड नेशन तो सर प्रोटेस्ट करता ना सर कि सर आप वॉर क्रिमिनल का सर पिक्चर लगा रहे हो सर. आई थिंक मुझे लगता नहीं को अप्रोच करता, बिकॉज वॉशिंगटन के अंदर अमेरिका जैसी कंट्री में नेताजी सोसाइटी नाम से रजिस्टर्ड बॉडी थी 1980s के अंदर. अब वॉशिंगटन में लोग लेक्चर दिया करते थे, जो भी सुनने चाहे 4-5 लोग आए. इंग्लैंड में भी लोग ओपनली डिस्कशन करते थे, वो किताबें बाहर निकल के आ रही थी. तो ऐसा कोई बाहर नहीं था ना. वो तो मेरे ख्याल से इवन 50s में कोई बाहर नहीं था. एनीबॉडी कुड गो एंड से समथिंग और द अदर. इनफैक्ट जो पहला लेटर जो लिखा था किसी हमारे यहाँ से उनकी डेथ के बारे में, किसी ने पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने शिकागो से बैठ करके अमेरिकन जो उनका विदेश मंत्री को लिखा था, उसने आंसर दिया. तो बातचीत करने में, बोलने में कोई बार आई थिंक वो तो सेंसिटिविटी सारी 49 उनकी खत्म हो गई थी. और मैंने आपको बोला कि अमेरिका में वॉशिंगटन में नेताजी सोसाइटी नाम की बॉडी थी 1980s के अंदर. लोगों ने डिस्कशन किया. वो जो रंजन बोरा जो आपने नाम सुना होगा, उसके बहुत से लेक्चर वगैरह थे. तो रंजन बोरा वाज एक्टिव इन अमेरिका डीसी में 1980s के अंदर. तो वो फिर तो ऐसा नहीं हो, इतना तो कोई माइक्रो लेवल पे नहीं जाता करके. कुछ प्रॉब्लम हमारे एंड पे हो सकती है, जैसे आपने बोला कि कम्युनिटिव स्टेप उन्होंने डाली थी, लेट डाली है. वो फैक्टर हो सकता है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि उसको लेकर डाउट है, उसको लेकर डिस्प्यूट है, तो लेट्स नॉट डू दिस थिंग. दैट कैन बी अ पॉइंट. बट फॉरेन में आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी बॉदर्ड अबाउट सच स्मॉल थिंग्स की वो स्टैंप होगा नहीं होगा. उसमें सर प्रोटेस्ट सर रेज नहीं होगा सर. वॉर क्रिमिनल का पिक्चर लगाने से सर प्रोटेस्ट रेज नहीं होगा. वॉर तो एडमिट ही नहीं कर रहे. वो तो उन्होंने कब बोला कि वॉर क्रिमिनल है? वॉर क्रिमिनल है ये बात किसी ने एडमिट करी नहीं आज तक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं करी है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिनाई किया. एक्चुअली उनके हाई कमिश्नर ने 61 में स्टेटमेंट दिया कि हमारी वॉर क्रिमिनल की लिस्ट में उसका नाम नहीं है. और जितनी यूनाइटेड नेशन वॉर क्राइम्स कमीशन की जो लिस्ट थी UNWCC की, सारी लिस्ट अवेलेबल है. यहाँ दिल्ली के अंदर भी अवेलेबल है, अमेरिका में पूरी अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है. मैंने वहाँ भी चिट्ठी लिखी थी, वहाँ लिखी थी. आप पूरी लिस्ट यूनाइटेड नेशन में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं उसको. गवर्नमेंट के लोगों ने चेक करिए. तो वो उसको ऑफिशियली तो मान ही कहीं नहीं रहे वो लोग कि वॉर क्रिमिनल का नाम है. मैंने कहा ना कि अमेरिका में वॉशिंगटन के अंदर उनकी नेताजी सोसाइटी नाम की बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी 80s के अंदर. रंजन बोरा के जितने लेक्चर और आर्टिकल्स हैं वो उसी केजेस में छपे थे.
तो वो तो Okay, sir. खुले में बोलते हैं। ह्यू टॉय की किताब 56 में आई थी लंदन के अंदर, Okay, sir. तो वो भी तो सब कुछ खुल के लिखा। तो बोलने में बात थोड़ी ना, किसी के बोलने में से कुछ वॉर क्रिमिनल का कोई एंगल उसमें फिलहाल उस सेंस में नहीं है। ओके सर। सर और लास्ट क्वेश्चन सर, सर आजाद हिंद गवर्नमेंट सर नेताजी ने सर क्या सर उसका सर प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर? सर वो कैसे डिसॉल्व हो गया लड़ाई सर? हार गए यार, वो लड़ाई खत्म हो गई, वो तो आदमी खत्म हो गया, सब लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो कर दिया। उसमें उनके दिमाग में हो सकता है, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर आप गुमनामी बाबा के पॉइंट से सोचें, शायद भगवंत जी ने इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनका मानना था कि मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, लेकिन अदरवाइज का उसका वैल्यू क्या, उसका सर गवर्नमेंट की वैल्यू सर जैसे 45 के बाद में क्या, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, वो खत्म हो गया, आदमी है नहीं, वो डिक्लेयर डेड हो गया, वो रशिया में जाके बैठा हुआ है। तो सर अब जैसे कोई कि सर ओडिशा सर फॉर्म करने 4-5 आदमी कांटेक्ट में हो तो उसको गवर्नमेंट थोड़ा बोलेंगे। गवर्नमेंट का मतलब पूरी सीट, पावर की सीट होगी, पूरे मंत्री होंगे, प्लांट टमकान होगा, पूरा पैराफेरनालिया होगा, तो ऐसी चीज को एग्जिस्ट नहीं करती थी ना। तो वो तो सर आजाद हिंद की जो सरकार, जब वो इंडिपेंडेंट, वो जो आपका हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, ये साइड हार गई है, सरेंडर हो गया, लोगों पे वॉर क्राइम स्टाइल चार्ज लग गए, सब कुछ हो गया, वो कहानी वहां खत्म हो जाती है। बाकी वो एक इंडिपेंडेंट लेवल पे वो एक्टिव जो भगवंत जी ऑपरेट कर रहे थे, हो सकता है उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब से वो रशियन डील कर रहे हो, लेकिन वो भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होगी, उसका कोई वैल्यू तो नहीं है ना पब्लिकली। अब वो रशियंस ने उनको किस लेवल पे डील किया, ये हमको देखना पड़ेगा। क्या उनको उन्होंने वो ऑर्लैंडो मजोटा के नाम पे डील किया, कि या उनको एक सेपरेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल डील किया? अब ये सारी बातें तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड निकलने पाएंगे ना, ये तो मैं और आप बैठ के स्पेकुलेट नहीं कर सकते। सर जैसे कि सर नाजीज वर सर ट्राइंग टू सर रीग्रुप इट एज ओडेसा सर, ऐसा सर मतलब सर गवर्नमेंट इन एग्जाइल को करके सर शिफ्ट करने का सर कोई एविडेंस आ रहा है सर उस समय का सर रीग्रुप करने का सर, जैसे कि सर नाजी सर ओडेसा रीग्रुप करने का तो वो तो करके उनको मेकअप से अभी कपिल जी ने बोला कि रीग्रुप करने का उनके ऑलवेज दिमाग में होगा, क्योंकि भगवान जी खुद जब बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे बाहर आना है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। तो वो पॉसिबिलिटी है कि रीग्रुपिंग की कोशिश तो कर रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश तो उन्होंने लगातार करी है, तो ये जरूर करा होगा। और ये उन्होंने ये भी क्लेम किया कि रशिया के अंदर मेरे आदमी है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ वहां बंदे मूव किए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हो सकता है कहीं और भी किए हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि जब आदमी बाहर निकलने को इच्छुक है, वो कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं भारत में, बाहर हैं, तो ऑब्वियसली कहने को रीग्रुपिंग का होगा। और इसलिए तो ये गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बना के इसको आईएनए को रीग्रुप नहीं होने दिया पूरे भारत के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद में। आपका मतलब कि शाहनवाज खान को मंत्री क्यों बनाया गया था? जितने ये आईएनए के लोग थे मशहूर, उनको लेकर के या तो छोटी मोटी मंत्री की पोस्ट दी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्री नहीं था, वो उसको बाकी लोग को फॉरेन सर्विस में बैठा दिया, वो फॉरेन कंट्री भेज दिया, ताकि जब उनके लीडर्स ही नहीं रहेंगे यहाँ पे तो रीग्रुप कैसे होगा? तो रीग्रुपिंग करने के लिए वो लीडर्स को होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट का तो पूरा प्लान है, वो तो आईबी के रिकॉर्ड निकलने चाहिए ना, तो हमको मालूम चलेगा कैसे उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज किया। कि सरकार को सबसे बड़ा मतलब जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आई है आपके 45-47 के बाद में, उसको सबसे बड़ा थ्रेट जो यही था कि अगर आईएनए के लोग रीग्रुप हो जाते हैं और एक फोर्स बन जाती है तो प्रॉब्लम होगी। और वो शरद बोस कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरद बोस की डेथ होगी 50 में शुरुआत में। ओके सर साइबेरिया में सर जो एम्बेसी बिल्डिंग है सर, उसका सर प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है सर? साइबेरिया में क्या चीज थी? सर आजाद हिंद का सर जो एम्बेसी सर जो था सर, उसका एक जिक्र कोई प्रभु राय कभी करती है, तो मतलब वैसे नहीं पता मुझे उसके बारे में, नो कोई खास पर्टिकुलर वो नहीं। वो ये डिपेंड करेगा जब अगर कल को डॉक्यूमेंट निकलते हैं तो कि भगवान जी जो मूव करे हैं वहां पे, वो एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट मूव किए हैं या फिर अपने पर्सनल कैपेसिटी में मूव किए हैं, कि उनको वहां क्या उनको हिसाब किताब मिला, ये तो सब देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो सारा सीक्रेट और रेवोल्यूशन के बीच में चीजें छुपी हैं, तो उसको तो इसकी लीगलिटीज क्या है ये मुझे पता नहीं इतना कुछ। ओके सर, है ना? और कुछ सर लास्ट क्वेश्चन सर पूछ लूं सर? हाँ पूछ लो। सर वियतनाम में सर आपने सर जो बोले थे सर, वियतनाम वाला एंगल सर पेरिस अकॉर्ड वाला सर पर्सन, सर वहां पे सर हिस्ट्री चैनल में सर एक आ रहा था सर, सनजूज आर्ट ऑफ वॉर बोल के सर, वहां पे सर मतलब वियतनाम में सर बेसिकली सर एक वर्ल्ड वॉर 2 जनरल को सर भेजा गया था सर। ओके सर, नहीं वो क्लेम मैंने जो उसमें इंडिया बिगेस्ट कवर अप में लिखा था, उसके ज्यादा मैं आप कुछ ऐड नहीं कर सकता। और उसका बेसिस मैंने मेंशन कर दिया कि उसके 3-4 बेसिस है बोलने की। पहला बेसिस ये कि भगवंत जी ने बात बोली थी कि मैं वहां गया था, सो दैट इज वन रीजन व्हाई वी वर इंक्लाइंड फॉर दैट थिंग। दूसरा ये कि जब फोटो देखने पे आते हैं तो वहां पे पेरिस पीस टॉक में एक आदमी है जिसकी शक्ल सुभाष बोस से मिलती है,
बीच में डाउट होता है कि उसकी हाइट लंबी है, लेकिन कुछ और फोटो में हाइट नॉर्मल नजर आती है। तीसरा ये कि एक जो आपका न्यूज़पेपर, आपका जो द टेलीग्राफ है कलकत्ता का, जिसको कोई जो प्लेन कैश की थ्योरी को सच मानता है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था, और जिस पत्रकार ने आर्टिकल लिखा उसको मैंने बातचीत की थी, और उसने वो मुखर्जी कमीशन के सामने आने को तैयार नहीं होती, तो उसने भी मुझे बोला, उसने उस पेपर में लिखा भी, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर टेलीग्राफ में ये बात छपी है तो टेलीग्राफ वो पेपर है जो फैजाबाद को सपोर्ट नहीं करता। उसमें उसने इंडिकेट किया कि वो उनके पास पेपर्स हैं कि वो आदमी वहां पे जिंदा था सुभाष बोस की 45 के बाद भी चांसेस वहां होने के हैं, और वियतनाम वॉर से टाइम पे उनके कागज वहां अवेलेबल है। तो ये 4-5 चीजों के बारे में सारा तोड़ मिला करके मैंने उसमें किताब में डाल दिया। कनंडर में जो मैंने ऐड किया है कि भारत सरकार ने वियतनाम गवर्नमेंट से कुछ पूछा था जब मुखर्जी आयोग के कहने पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास में कोई जो आर्काइव में है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आर्काइव में वो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड की बात कर रहे हैं, सीक्रेट की बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट भी ढंग से नहीं पूछ रही है, लेकिन फॉर द टाइमिंग इन सिवाय इन 4-5-6 लीड्स के अलावा हमारे पास में और कुछ नहीं है। वो सारी लीड हमने पब्लिक डोमेन में डाल दी है कि ये लीड्स है, ये लीड्स है, ये लीड्स है। तो उसके बाद कोई ऐसा कोई चीज डेवलप नहीं हुई है जिससे कि या तो मैं उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दूं या कंप्लीटली एक्सेप्ट कर दूं। तो वो कहानी वहीं की वहीं रहे जहां पहले थी। ओके सर, बट सर आपने सर बोला था सर, आपने सर वियतनाम का सर उस समय सर जो चीफ ऑफ स्टाफ था सर, उनका बेटी को सर आप लोगों ने ट्रेस किया सर, आप लोगों ने उनसे बातचीत किया बात है, सर? वो शायद हमारे दोस्त ने मेरे उसने क्या बातचीत किया, और वो ढंग से उसका आंसर नहीं दे रहे थे। ऐसे तो 50 पॉइंट मेरे पास और पड़े कि कुछ ना कुछ डाउट है उसमें, लेकिन वो क्या वो एविडेंस है? अब उसने स्टेटमेंट तो, वो जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है उसने स्टेटमेंट तो लिख के दी नहीं हमारे को। वो तो आप एक इम्प्लाई कर रहे हैं, आप हम लोग उसको समझ है कि उनसे बातचीत की, वो मेरे दोस्तों से ढंग से बात नहीं कर रही थी, और नेताजी का नाम सुन करके उसको हल्का सा उसने काट दिया। तो उससे हम कुछ समझ सकते हैं, वो कुछ इम्प्लीकेशन कुछ इम्प्लाई कर सकता है, लेकिन वो प्रूफ नहीं है ना हमको। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने और चंद्रचूड़ ने, और जब हम लोग जो अप्रोच लेते हैं कि हम वही चीज को बोलेंगे ठोक बजा के जिसके लिए प्रूफ है। मैं अगर आप बोल दूं तो मेरे पे वो साबित करने की जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी ना। मैं वही बोलूंगा जो मैं साबित कर सकता हूँ। हैंड राइटिंग साबित कर सकता हूँ, बोलता हूँ। डीएनए में घपलाबाजी है, साबित कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। पवित्र मोहन राय क्या बोलता था वो साबित कर सकता हूँ, तो बोल रहा हूँ। जो चीज साबित नहीं कर सकता उसके बारे में मैं आपको फिर वही बता सकता हूँ कि हमारे सामने क्या 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 चीज हमारे सामने आई थी। तो लीड्स हैं, वो लीड्स हमने डाल दी हैं, और बाकी अब फ्यूचर में क्या होता है देखते हैं, है ना? ठीक है, गुड नाइट अनिकेत। थैंक यू सर, बाय सर। आइए कृष्णा, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। अरे ठीक है, बढ़िया। चलो सर, मैं ये पूछना चाहता था कि सर आपके हिसाब से रशिया वाली थ्योरी मतलब कितनी करेक्ट है? मतलब आपके हिसाब से रशिया में हमारे साथ नहीं, देखो हमने अगर ये ऑलरेडी बोल दिया कि वो, देखिए 3 थ्योरी है, प्लेन क्रश की थ्योरी, दूसरी आपकी रशियन थ्योरी कि वो रशिया में थे और मार दिया गया। गुमनामी बाबा की थ्योरी बोलती कि रशिया में थे लेकिन वहां से बाहर आ गए। कैसे सर, आखिर किस तरीके से आ सकते हैं बाहर? नहीं, वो सब कुछ हो सकता है, वो अब अलग कहानी है। मैं कहने का मतलब है कि पहला फ्रेमवर्क ये है कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज को 100% साबित कर दे, मान लीजिए कि आज उसका 100% प्रूफ मिल जाता है कि वो ताइवान में मरे थे, वो डेड बॉडी की फोटो निकल जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल जाती है, मतलब कहानी क्लियर हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बाकी दोनों खत्म हो गए। अगर वो ताइवान में मर गए तो ऑटोमेटिकली ही वाज नॉट डेड इन आइदर फैजाबाद और इन रशिया। ठीक है, नाउ अगर आप ये साबित कर देते हैं कंक्लूसिवली कि वो फैजाबाद में ही थे, यहाँ पे बैठे थे, तो ऑटोमेटिकली ही कैन नॉट बी डेड आइदर इन ताइवान और इन रशिया। नाउ इन तीनों एंगल में सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट एविडेंस जो निकल के आ रहा है, जो ठीक ठाक निकल के आ रहा है, जो सॉलिड एविडेंस निकल के आ रहा है, फैजाबाद से आ रहा है। कि फैजाबाद में 3 तरह का एविडेंस आ रहा है। पहला आपका आ रहा है कि आई विटनेस अकाउंट। ठीक है, आई विटनेस अकाउंट बहुत क्रेडिबल होता है, पहली बात तो ये समझ ले। आई विटनेस अकाउंट अगर क्रेडिबल हो तो उसकी वैल्यू डीएनए अगर आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी एरा गहरा बोल देगा तो सच हो जाएगा, लेकिन कोई क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट हो जिसपे आप डाउट नहीं कर सकते गवाह उसके ऊपर, अपने बोलने वाले के ऊपर, वो अगर आपका आई विटनेस अकाउंट निकल के आता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, नंबर 1। तो यहाँ पे आई विटनेस अकाउंट है कि बहुत सारे लोग जो या तो सुभाष बोस को जानते थे और उनको झूठ बोलने का मोटिव नहीं था, या बहुत से लोग जो उनको नहीं जानते थे लेकिन झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, उन्होंने इस आदमी को यहाँ देखा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके सपोर्ट में जो उस जमाने का कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स हैं, जो उनके आपस के लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं, वो उसके फेवर में जा रहे हैं। तो आई विटनेस अकाउंट को आप ओरल
जो है उसको आप रिकॉर्ड को आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्ट कर रहे हो। तीसरा, उसमें आपकी हैंडराइटिंग जो है मैच करके फॉरेंसिक जो है उसमें। चौथा, हाँ, हमने उसमें एस्टैब्लिश कर दिया कि डीएनए में घपलेबाजी इन्होंने करी है। घपलेबाजी क्यों करेगा कोई, बताइए मुझे। डीएनए की और हैंडराइटिंग की रिपोर्ट में सरकार घपलेबाजी क्यों कर रही है? छुपाने के लिए। मैं क्यों क्यों छुपाने के घपलेबाजी लिए। कर रहा हूँ? तो पॉइंट ये कि जब वो इतना क्रेडिबल एविडेंस निकल के आ गया कि वो फैजाबाद में थे, तो ऑटोमेटिकली ही कैनॉट बी डेड इन रशिया। अगर रशिया सर, मार दी तो ये बंदा कौन बैठा है? अगर आप बोल रहे हैं कि आदमी इम्पोस्टर, तो भैया इम्पोस्टर की हैंडराइटिंग कैसे मैच कर गई? और सर रशिया को उनको छुपाने का आखिर मोटिव क्या रहा होगा? मतलब उनको उनका क्या फायदा है आखिर रशिया को छुपाने का? रशिया में जब यहाँ पहचान से वो सन 40 जब 40 में यहाँ से भागे थे वो नेताजी यहाँ से, तो कहाँ से गए थे रशिया? कहाँ से गए थे जर्मनी? वो उनका रूट क्या था? सर उनका सर मेरे को ढंग से काबुल। याद नहीं है सर। काबुल गए थे यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से ट्रेन पकड़ के गोमो से निकल गए आगे निकालते, जो आज के ज़माने का पाकिस्तान है, वहाँ से फिर अफगानिस्तान गए। उसके बाद कहाँ गए? रशिया सर में। लेकिन सर, हाँ रशिया में गए थे सर, ना। पर सर तो रशिया का क्या फायदा है रशिया इसमें? में 10 दिन तक उनके सपोर्ट से जर्मनी पहुंचे ना, तो रशिया ने बचाया, उनकी जान की बचाई। मेरे सर बचाई थी। तो आपने ऑलरेडी मेरी जान बचा ली है, तो हाँ आप ऑलरेडी मेरे सपोर्टर हो गए। नहीं तो वो उसके हाँ हैंड ओवर कर देते अंग्रेजों के। उन्होंने क्यों बचाया उसकी जान? उन्होंने क्यों उसको जाने दिया हाँ, आगे रशिया? क्यों उसके पासपोर्ट को एग्री किया उन्होंने वहाँ पे? और हम्म, सुभाष बोस ने जाके उनको थैंक बोला, उनके मिनिस्टर को, कि आपने मेरे को वहाँ पे 10 दिन का आपने बचा ट्रांजिट लिया। दिया। तो रशिया का तो ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनकी फेवर में। उसके बाद में जब वो सन 45-44 के आखिर में उन्होंने रशियन एम्बेसडर को जो चिट्ठी लिखी है सुभाष बोस ने, जो हमने किताब में, मैंने बिगेस्ट कवर में मेंशन किया उसका, उसमें उसने साफ मेंशन किया कि भाई आप लोग तो हमेशा से हमारी फ्रीडम सर्कल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और मैं हाँ ऐसा आदमी हूँ जो आपकी सपोर्ट करता है। मैं अभी आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया हूं आपके। तो वो ये दिखा रहे हैं कि मैं आपके फेवर में हूं। तो दुनिया में देश ऐसी तो काम करते हैं। यस सर। दुनिया में जो देश होते हैं, जब दूसरे लोगों से डील करते हैं खासकर, और या दूसरे बड़े नेताओं से डील करते हैं, तो आप मेरे फेवर में, मैं आपके फेवर में, तो फिर जब ट्रम्प हमारे फेवर में, हम ट्रम्प के फेवर में, तो दोस्ती तो होगी, और क्या होगा? तो दोस्ती इसी को सही तो बात बोलते हैं। है। तो वो रूस के खिलाफ में नहीं थे, रूस उनके खिलाफ में नहीं था। तो ऑटोमेटिकली तो वो जब वो लड़ाई खत्म हुई, तो उन्होंने ऑप्शन वे किया कि मैं किस जगह जाऊं। तो उनके पास में 3-4 ऑप्शन थे। नंबर 1 ऑप्शन उनका रशिया जाने का था, और वो रशिया चले गए। तो इट्स वेरी लॉजिकल। ही सॉट अजाइलम। जब पूरी कहानी निकल के आ रही है कि रूस में गए, उन्होंने गोली मार दी, अरे यार तुम सुभाष बोस को पागल समझते हो क्या? वो गोली खाने के लिए वहां जाएगा? वो पहले से प्लानिंग हुई थी पहले जाने की। वो वहीं जाएगा जहां उसको सपोर्ट मिलेगी। और वो बेकार की बातें बोल रहे हैं कि रशियंस ने उनको बुला लिया वहां पे, उनके कोई इंग्लैंड के गवर्नमेंट के साथ पैक्ट था इंटेलिजेंस का। अरे यार, रॉ के आदमी तो आईबी के आदमी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हमारे देश में। यस और सर। तुम सर बात उम्मीद कर रहे हो कि रशियन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन देगी। हमारी कंट्री में रॉ के आदमी आईबी के आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। सर रॉ फॉर्मी अमेरिका में एफबीआई और सीआईए का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं नहीं होता। अमेरिका में सीआईए का और एफबीआई कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में, तभी वो 9/11 हुआ वहां पे। तो ये बहुत अजीब किस्म की मतलब दलील दी जा रही है कि क्योंकि रशियन ने इंटेलिजेंस ने और ब्रिटिश इंटेलिजेंस में कोई पैक्ट किया था 41 में, उसका मतलब ये नहीं कि रशियन सारी दुकान खोल के उनको दिखा देंगे। That's not practical। सर रॉ तो इसलिए शेयर नहीं करती आईबी से इंफॉर्मेशन, क्योंकि आईबी जो है इंदिरा गांधी ने फॉर्म इसलिए करी थी क्योंकि हर एक वो डिपार्टमेंट की अच्छे से आपस उतनी में सेफ नहीं है IB। हर डिपार्टमेंट की आपस में रेवलरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉ वाले आईबी वाले दूसरे के दुश्मन है, लेकिन आपस में वो सब सीक्रेट रखते हैं। बात खत्म। तो रशियन इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करे ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ में, बहुत दूर की बात है। हमारे लोग ही आपस में शेयर नहीं करते, अमेरिकन नहीं करते, FBI शेयर नहीं करती। आपके अकॉर्डिंग सर एक क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग अगर सर एक जस्ट हाइपोथेसिस मान लेते हैं ये कि अगर वो बाहर आ जाते सुभाष चंद्र बोस, तो क्या चेंजेस हो सकते थे कंट्री में आपके अकॉर्डिंग? ये बवाल मस्त है ना। अगर वो बाहर निकल के आते, फॉर एग्जांपल वो आके निकलते 1963 में, ठीक है, तो कैसे निकलेंगे? कोई बड़ा मोडेलिटीज करके, बड़ा करके वो दिल्ली में बहुत बड़े लाल किले के सामने भी आएंगे, पब्लिक के सामने, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी तो मालूम चल गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, पूरा गवर्नमेंट की मशीनरी रोकेगी उसको, ठीक है ना। थोड़ा निकल आते हैं, निकल आने के बाद में तो ऑब्वियसली वो आदमी कोई वहां पे निकल के कोई एमएलए का टिकट तो लड़ेगा नहीं। बवाल मचेगा। लोग पूछेंगे आप कहाँ थे? क्या मैं रशिया में था। रशिया में क्या कर रहे थे? कहते हैं मैं छुपाया था। इनको मालूम था? इनको आपने बताया था? कहते हाँ बताया था मैंने। कहते ये तो हमको झूठ बोल रहा है, ये तो कह रहा है मर गए प्रियंका में। कहता आप इनसे पूछिए। तो लोग गाली देंगे कि आप इतने गलत आदमी हो कि आपने उसको मार दिया वहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए। फिर मारकाट मचेगी आपस में। जब मारकाट मचेगी तो आपको लगता है कांग्रेस ही चुप रहेंगे? कांग्रेस के लोग, आपको पता है 84 में क्या किया था सरदारों के साथ में, सिखों के साथ में? यस सर। गलों में टायर डाल के लगाया था आग लगा। तो आपको लगता है ये चुप बैठेंगे? दूसरा क्या, हमारे देश में सब लोग सुभाष बोस के सपोर्टर हैं।
कभी नहीं सर, अभी बिल्कुल कलकत्ता नहीं गए सर। ना कभी? कलकत्ता गए सर कभी? अभी थोड़ा, सर अभी हम लोग की कलकत्ता जनरेशन में जो है वो थोड़ा सपोर्ट कलकत्ता करती में है, जो नहीं तो पंडित पहले तो बिल्कुल पंडित नहीं। नेहरू आते थे ना कलकत्ता में, पंडित नेहरू, तो बंगाली सड़कों में नाचते थे उनकी शक्ल देख करके। इतना प्यार था उनको से, नेहरू से, बंगालियों को। ठीक है जी। अभी राहुल गांधी के कितने सपोर्टर कलकत्ता में बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि सुभाष बोस निकल गया सारे बंगाली खुश हो जाएंगे, सुभाष बोस बाहर आ गया, वो जो उनको तो जो कुत्ता बोलते थे वो क्या खुश होते क्या? तो कभी नहीं अगर सर। उनके फेवर में 10 आदमी हैं तो 40 आदमी उनके खिलाफ भी खड़े थे। हाँ सर। तो इतना आसान नहीं, ये जो बकार की बकवास जो लोग सुबह शाम करे जा रहे हैं ना कि वो निकल के आए हम उनको कर लेते, वो निकला तुम क्या कर लेते बताओ मेरे को? आधे लोग तो बोल रहे हैं तो जो कुत्ता था वो, आधे आपके वो है जो नेहरू के सामने नाचा करते थे बंगाल के लोग। दिखाओ सर वीडियो में, आज आप के बेशर्मों की सर तरह बातें आज कर रहे हैं आके फेसबुक मेरे साथ में आके आज। सर आज आपका के सारा जमाने में मीडिया, सारा वहाँ पे मीडिया, सारा आपका इंटेलेक्चुअल सर्कल जो है कांग्रेस के ग्रुप में था 1930 के 40 के बाद से। वो कैसे निकल के आता आदमी बाहर? वो सपोर्ट सही सिस्टम कहाँ बात था है। उसके पास में? था बवाल मचता, देश में लोग आपस में भिड़ाई करते, वो हम्म, इसलिए वो निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इतना आसान नहीं निकलना उनके लिए। हम्म। सर आज के जमाने में हम नेहरू जी को गाली दे लेते हैं, उस जमाने में उनका बहुत दबदबा था सर, एकदम गजब वाला। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री थे, इतने बड़े, हाँ, सारी पावर उनके हाथ में थी। आज तो आपका भगवान भला करे अमेरिकन का कि ये मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में, और आप आपस बातचीत कर सकते हैं इसमें से। आपको कोई बोलने का मीडियम था आप लोग के पास में तब? कभी नहीं सर। कुछ नहीं था ना, लेटर्स कोई चीज चलते नहीं थे। थी, तो लोगों को पता नहीं कि हमारी हालत क्या थी। यस सर। बिना मोबाइल फोन से हमने जिंदगी कैसे बताइए, हमको पूछो। आप लोग तो नए जमाने के, आपको तो मोबाइल फोन 50 ये तामझाम आ गई। हम लोगों ने कैसे रगड़ाई की बच्चों ने, हमको पता है, बिना मोबाइल फोन के। तो लाइफ यस बहुत डिफरेंट थी, इतना आसान नहीं था वो कोऑर्डिनेशन करना, निकाल लोगों को वो करना, और निकल के आते देश बवाल मसा। वो बोलते थे ना कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, लोग तकलीफ में आएंगे मेरी वजह से। दैट्स व्हाट। बताओ, हो गया? यस चलो सर, ऑल द ठीक है बेस्ट, सर। दोबारा नमस्ते मिलेंगे। सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हाँ म्यूट तो नहीं ऑटो? ठीक है, यस क्लियर। सर पहले भी ज्वाइन नमस्ते। किया था। कोई बात नहीं, दोबारा भी बीच में हम लोग लेते रहेंगे लोगों को, लेकिन है कि सवाल नहीं होने चाहिए। हाँ सर। बताओ, सर where are you from? You tell those who have not met you last time here, but where are you from? आई एम फ्रॉम इंदौर। इंदौर, हाँ Right ठीक है। now तो अभी I'm ग्वालियर का talking इंदौर to- का हो गया। हाँ हाँ, बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन फॉर टुडे? सर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप मैंने मराठी में पढ़ी है, मतलब अभी उसकी अच्छी हुई है खत्म की ट्रांसलेशन? है। उसकी ट्रांसलेशन हाँ अच्छी हुई सर। है उसकी? अच्छा, हाँ बिकॉज वो अच्छी है काफी लेकिन सीनियर वो जर्नलिस्ट है मैडम जिन्होंने की थी, तो वो काफी जानी मानी डॉक्टर है मेरे ख्याल से वो, शी इज हाँ PhD। तो उन्होंने बहुत तरीके से इतनी मेहनत से एक बुक को, इतनी कॉम्प्लिकेट बुक को ट्रांसलेट करना और वो इतनी मोटी किताब बनाना, तो अगर उन्होंने अच्छी किया तो खुशी की बात है। मुझे भी अच्छा है, हाँ उसके काफी इनपुट मिले, लोगों ने बोला कि काफी अच्छा हुआ है। हाँ सर, मतलब तो बढ़िया। टेक्निकल वर्ड भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हाँ, किया और है। इतनी बहुत किताब बहुत मोटी हो गई, इतनी इतनी मोटी किताब है, हाँ और वो चलती भी ठीक है, अच्छी चली है वो। मेरे ख्याल से हिंदी से हाँ ज्यादा चली है मराठी की। हम्म। अभी सर कॉनेंड्रम रीड करना स्टार्ट किया है, 2 चैप्टर्स अच्छा चलो, कंप्लीट। तो आप पढ़ लो एक बार, क्योंकि करंडरम मुझसे बहुत ज्यादा आगे है, और वो शायद काफी, हाँ जो बिगेस्ट कवर अप में क्लैरिटी नहीं थी वो आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि वो हाँ तो सर 2011 में लिखा था। ये हाँ थोड़ा सा ये नया है, पर इसमें 2 लोग लगे, उसमें तो एक अकेला एकला आदमी था मतलब डायरेक्टली, तो हाँ इसमें अब 2 चंद्रचूड़ और मैं दोनों मिलकर के इनमें लगा है। ऐसी हाँ बहुत सी सर। बातें जो मेरे समझ से बाहर है, तो उसने समझाई है, क्योंकि उसमें तो हाँ ज्यादातर लिटरेचर हमारे बंगला में था, तो वो तो कोई बंगाली उसको समझा सकता है, मैं तो समझा सकता नहीं, हाँ है ना? सर 3-4 क्वेश्चन थे, तो 4 फर्स्ट बार तो ये पूछना, था 3-4 में बहुत लेट जाएगा। मैंने आज सबको ये बोला है कि मैं 1 घंटे प्रोग्राम करूंगा, अभी आधा घंटा हो गया, मतलब 1 हाँ घंटे के आसपास, क्योंकि वो कह रहा है 2-2 घंटे करने से, वो कह रहा है कि मैं जब बातचीत करता हूँ ना, मेरे को तो बड़ी इच्छा होती है आप सब लोगों से बातचीत करने की, जो जो आ रहा सभी से बात करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1-1.5 घंटे के बाद में लोग हट जाते हैं, हाँ तो फिर सर वो पर्पस डिफीट हो जाता है कि मैं बैठ के 2 आदमी से रात को बात कर रहा हूँ 12 बजे, और देखने वाले लोग बहुत कम है। तो अब ये हाँ टाइम सेट कर दिया कि मैं रफली 1 घंटा, थोड़ा आगे पीछे प्लस माइनस करके करूंगा, लेकिन मैं इसको काफी रेगुलरली करूंगा, मतलब वीक में यस 3-4 बार कम से कम निपटा दूंगा। चलो अब पूछो सवाल, मैं 1-2 तो आंसर दूंगा आपके। हाँ सर, आपने अभी 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाला था कि वेदर सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेजेंट इन नेहरूज फ्यूनरल, हाँ, in that you said that Gumnami Baba had claimed that he was there and his pictures were taken up. यस ही सेड So दैट।
Could you find some pictures or? नो आई कुड नॉट फाइंड, आई एम कंफ्यूज, वो क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी फोटो ली गई थी, वहां पे था मैं। उसने ये भी बोला कि जिसने फोटो ली वो आदमी गायब हो गया बाद में। और ये बात और लोगों ने बोली है, ये इवन अपने कुछ और लोगों ने मुझे बताई है, पत्रकार ने बताई कि वो ये बात बोली थी उन्होंने वहां पे, और ये बात बहुत मशहूर है पॉलिटिकल सर्कल्स में। लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है कि ये फोटो क्या वही है या कोई और फोटो भी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये धम्माबारा की कहानी है क्या, ये एक्चुअल कहानी है या फिर असली कहानी को दबाने के लिए कोई और एक नई कहानी खड़ी की गई। तो ये धम्माबारा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस फोटो के पीछे कुछ ना कुछ इशू है इसमें। हो सकता है कि रियल फोटो कोई और हो, और उसको, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब ये कहानी 65 के आसपास ये घटना आई थी पब्लिक डोमेन में, तो धम्माबारा साहब ने 72 में स्टेटमेंट दिया है। तो ये 4-5 साल का गैप होना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। गवर्नमेंट को उसी वक्त बोलना चाहिए था कि आपकी सुभाष बोस नहीं है। पार्लियामेंट में सवाल पूछे गए थे, उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया। तो इसमें कुछ लूप होल्स है। अभी सीधा मैं सपाट मैंने आंसर ये दिया कि अगर आप मुझसे सीधा पूछोगे साहब ये फोटो किसकी है, धम्माबारा की फोटोग्राफ है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि गुमनामी बाबा ने बोला कि मैं वहां गया था, और अगर वो गए थे वहां तो गवर्नमेंट को उनके बारे में मालूम होगा, और अगर वहां गए थे तो शास्त्री जी उनसे मिले थे वहां पे। तो फिर उसमें बहुत से प्रॉब्लम एरियाज आ जाते हैं कि क्या मीनिंग निकाले क्या निकाले। तो उसमें इसलिए मैंने बोला कि थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम वो इंटरेस्टिंग कहानी है। सर अगर फोटो वो है वन तो डे पहले तो इंटेलिजेंस के फोटो रिपोर्ट निकलेंगे तो ये कहानी हमको समझ में आ जाएगी, हाँ। है ना। और सर एक वीडियो में आपने बोला है कि एमिली शेंकेल शी ट्राइड अ लॉट टू फाइंड व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर That she did. 1945. That she did. Did she try to contact India or Indian I government? don't know what we know that she knew that he was alive. That is very clear. बाद में उनको खबर लगी स्पेसिफिकली 50s के दशक में कि वो रूस में थे और उनको जहर दिया जा रहा था। दैट इज ऑल शी कुड मेक आउट। तो उनका जो मानना था या उनकी जो समझ थी उनके हिसाब से उनको रूस में उनको टॉर्चर करके मार दिया गया। दैट इज व्हाट शी न्यू। Did she उसके अलावा take हमें कोई डायरेक्ट क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैं उनकी लड़की से मिला था। वो लड़की वो सीधी बात करती नहीं है, तो पूरा आइडिया मुझे नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। लेकिन जो हमारे सामने क्लियर कट एविडेंस है कि उनकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी एक बार, या जो उन्होंने अपने फैमिली वालों को बोला, फैमिली वालों ने मुझे बताया, उससे तो इतना ही समझ में आता है कि वो कंफर्म थी कि वो नहीं मरे और वो रूस में थे। और वो अपने में बहुत बड़ी बात है। मुझे अनीता की मैडम की कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है। जब उनकी माँ बोल रही है मुझे उसकी माँ के उनकी इंपॉर्टेंस है। So did she come to India sometime or? आई थिंक शी नेवर केम टू इंडिया। Oh. शी नेवर केम टू इंडिया बिकॉज यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा मारा मारी थी, कुछ करके कंट्रोवर्सी थी। फिर वो लोगों ने मानने से मना कर दिया कि है नहीं, बीवी नहीं है, शादी को लेकर डिस्प्यूट थे, तो सारे पछड़े को लेकर कि वो कभी यहाँ पे नहीं आई। लेकिन उनके रिलेटिव यहाँ से उनको जाके मिला करते थे। रिलेटिव्स क्या, जो भी हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाएंगे उनसे मिलते थे जाके बहुत सारे। तो कईयों को मैं 2-4 से लोगों से मिला, वो उनसे जाके वहाँ पे मिले, तो इंडियंस काफी उनसे मिले वहाँ पे उस टाइम पे। और सर एक क्वेश्चन था कि इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में आपने रेफरेंस दिया है कि गुमनामी बाबा की बुक ओई महामाना भाषे रिटन बाय चार्निक, so is that available somewhere? Like It's available. I think somebody has done English also version of it. तो अवेलेबल है वो। but I और उस tried किताब का searching. प्रॉब्लम ये है, उस किताब का प्रॉब्लम है कि अगर आपने बिगेस्ट कवर अप पढ़ी है तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जनरल आदमी को पल्ले नहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लिखने का तरीका ऐसा है कि किसी को पल्ले कुछ नहीं, उसमें समझ ही कुछ नहीं आया किसी को क्या लिखा। कभी एक लेटर से आधा पन्ना यहाँ से लिया, आधा पन्ना वहां से लिया है, बीच में उसने चार्निक ने अपनी कहानी डाल दी, तो इट्स बिकम वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी है या जिनको जिस टॉपिक की अच्छे से समझ है। जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आने वाली, पर अवेलेबल है वो आपको किताब। सर अमेज़न वगैरह पे मैंने सर्च किया था लेकिन वो आउट ऑफ पता नहीं, मुझे स्टॉक है। पता पड़ेगा, मैं देखता हूँ बीच में कहीं अगर आप पीडीएफ हाँ अगर पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी कुछ पीडीएफ मेरे पास तो नहीं, अगर होगा भी तो मैं तो रखूंगा नहीं, मैं तो उसका पब्लिशर नहीं हूँ ना। पीडीएफ तो होगा तो भेजूंगा मैं नहीं किसी को, फिर वो तो इलीगल है, मेरे पास है भी नहीं, आई डोंट हैव इट। लेकिन है कि आप देखना, वो है, उसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है। हाँ सर, ठीक है। वो अमेज़न पे दिखाता है। चलो ठीक है, एनी हो सर एक और क्वेश्चन था, बताओ। कैन आई आस्क? है in India's biggest cover-up, you have last chapter I think you have written that there were rumors that Gumnami Baba also didn't die. He left. हाँ, तो रूमर्स अभी भी हैं, अभी तो लोग मेरे पीछे, मेरे चंदों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए ना।
अभी भी सवाल मुझसे लोग पूछ रहे हैं, और लोग हमको भी गाली दे रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों लिखा, बट वो तो है, रूमर्स तो है। और रूमर होने के कारण हमने एक वो वीडियो बनाया था पवित्र मोहन राय के लड़के के साथ में, तो उन्होंने बताया कि भगवान जी ने उनको पहले बोल दिया था कि आपने इस टाइम के बाद कांटेक्ट नहीं करना मुझसे, हाँ और तो पहले से उन्होंने इंडिकेशन दिया था करके कि वो है। फिर वो लगातार बोल रहे थे कि वापस मैं आऊँगा, मैं जिंदा रहूँगा, मेरी उम्र 140-45 साल होगी, ऐसे करके हुआ था। फिर उस बात को लेके वहाँ कुछ डाउट हुआ, तो वो फिर एक अपने आप में एक मिथ बन गई है, लोग अभी भी बोलते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी तो है वो। लेकिन हमने जो स्टैंड दिया कि हमें तो डेटा चाहिए ना, मैं तो रिसर्चर हूँ ना, मैं तो फिर तंत्र मंत्र पे नहीं जाऊँगा ना। तंत्र मंत्र को मैं साबित कैसे करूँगा कोर्ट कचहरी में जाकर के? मेरे को तो Yes. लेक्चर देना यूनिवर्सिटी में जाकर के, तो हाँ वहाँ तो मैं वही बोलूँगा जो मैं चीज़ साबित कर सकता हूँ, जो मैं साइट कर सकता हूँ। तो जो हम लोग साइट कर सकते हैं, जो हमको नज़र आ रहा है, हमने अपना वर्डिक्ट दे दिया। लोग बोलते हैं वो ठीक है, अब जो कहता है ज़िंदा है तो भैया वो प्रूफ निकाल दे, हम तो खुश होंगे, हम कौन से उसमें दुःख होंगे। अगर वो भी ज़िंदा है तो उसको लेके सबसे खुश तो मैं ही होऊँगा, हाँ हमारा तो yes. काम ही साब सारा क्लियर हो जाएगा। है ना? चलो ठीक है, आपसे राधिका जी फिर Thank you. मुलाकात। हाँ बाय-बाय। आइए पंकज, नमस्कार। नमस्ते। अपना ये अपने अनम्यूट करो पहले अपने आप को। चलो मैंने कर दिया। जी नमस्ते, सर। आप किधर हो? पहले सर मैं हिमाचल से हूँ सर। हिमाचल में कहाँ पे? सर ये पाउंटा साहिब है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है सर। पांटा साहिब के देहरादून पास? के हाँ? जी सर, वो प्रॉपर पाउंटा साहिब से हूँ सर। अच्छा, बढ़िया। अभी क्या है, तो सर बर्फ पहले पड़ी है तो सुना है मैंने वहाँ पे, वो लाहौल वगैरह में तो पड़ गई। आपके ठंड हुआ कि नहीं हुआ? आप थोड़े नीचे हो, ठंडा आप तो इतने हाइट पे नहीं हो। मैं नीचे हूँ सर, प्लेन में हूँ सर। हाँ प्लेन में तो, लेकिन ठंड तो होगी कि नहीं है? ठंड तो आप तो, मैं तो ठंड कुर्ता है पहन सर, के, आपको जैकेट पहनी है ना आपने? जैकेट। जी सर, ठंड है अभी ना, तो ठंड तो अंदर है इनर ना? भी पहना है। जी सर। है? हाँ ठंड होगी जी अभी सर, तो, दिल्ली में तो ठंड तो गर्मी है है। सर। जी जी जी। दिल्ली में नहीं है ठंड तो उतनी। जी सर, मुझे दिल्ली में बहुत अभी अच्छा लगा। आपका दिसंबर, दिल्ली में ठंड पड़ती है आपकी अब 20 दिसंबर के बाद, तब आपका टेम्परेचर यहाँ 3-4 सर डिग्री हो जाता है, जान निकल आती है। तब इस मुझे भी बार ढूंढना ठंड पड़ेगा, ज़्यादा है सर वैसे। इस कमरे में बहुत ठंड होता है मेरे में। हाँ जी जी सर। बताओ। जी सर, पहले तो आपको शायद नमन सर, आपने जो कार्य किया ना सर, अरे नहीं, मुझे तो बहुत मतलब हाँ। तो सर मुझे पूछना है, मैंने मतलब वीडियो में भी देखा है सर, कि इसमें बताते हैं कि अपने जो शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वो उन्होंने कहा था कि मैं अभी एक ऐसे व्यक्ति को भारत लाने जा रहा हूँ, जब वो रशिया गए थे सर, वो उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब ऐसा सुना है कि इसी कारण से, क्योंकि वो सुभाष जी को वापस ला रहे थे, तो उनको मतलब इसलिए इसी कारण से मारा गया, मतलब उनको जहर दिया गया। तो ये सर इसमें सच्चाई है कुछ, ये सर ये वैसे हाई बनाया हुआ है सर? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है पूरी, मतलब उसमें कहानी मैं आपको मोटा मोटा 3-4 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने शास्त्री जी पे भी किताब लिखी है मैंने, तो मुझे उसकी भी समझ है, मैं उनके परिवार के लोगों से मिल चुका हूँ, वो ताशकंद वाली घटना को भी मैंने जितना पॉसिबल था स्टडी कर चुका। वो क्या बात हुई है उसका भी मोटा मोटा मुझे पता है क्या बात हुई थी। पहली बात ये कि आप ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस है, मतलब प्रूफ है, मतलब एविडेंस लीगली ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से एज ए जर्नलिस्ट एविडेंस दिखा रहा है कि शास्त्री जी को शायद ये मालूम था कि सुभाष बोस नहीं मरे, नंबर 1। जी जी। नंबर 2, एविडेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि शास्त्री जी का शायद बिलीव था, या उनकी नॉलेज थी, या उनको हल्का सा आइडिया था, या उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि वो 1962-63 में सुभाष बोस जिंदा थे। ठीक है, ये उन्होंने प्राइवेटली इंडिकेट किया। सरकारी स्टेटमेंट हमेशा से सेम रहा है कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, तो ऑफिशियल पोजीशन वो सेम है। लेकिन आपको पता है कि ये बड़ा मामले बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पब्लिकली आप कुछ बोलते हैं, प्राइवेटली कुछ बोलते हैं। तो प्राइवेटली उन्होंने इंडिकेट किया कि वो जिंदा थे। सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज अ प्रूफ टू मी एज अ जर्नलिस्ट। तो क्रेडिबल इसको मैं समझता हूँ। वो उन्होंने फैमिली में भी इंडिकेट किया, उनके फैमिली के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो जिंदा है। दूसरा ये कि ताशकंद में तो इतना तो कंफर्म है कि उनको जिंदा होने का चांस था। नंबर 2, किसी उनके बहुत खासम खास आदमी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर वो जिंदा रह जाते तो सुभाष बोस का केस खोल देते, शायद उस पर काम कर रहे थे। तीसरा, जब वो ताशकंद में गए हैं तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ भारत पाकिस्तान के बारे में है, उसमें कहीं नेताजी का नाम कहीं किसी उस पर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ होगा भी तो ये प्राइवेटली बात की होगी। अगर उन्होंने ये मुद्दा रेज भी किया रशियन गवर्नमेंट से, तो हमें नहीं पता, वो तो रशियन साइड बताएगी या भारत की साइड से कोई बोलेगा, तो ऐसा कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
वहाँ ताशकंद में जो उन्होंने लास्ट टेलीफोन कॉल किया था अपने घर में, जो मेरी नॉलेज है उसमें सुभाष बोस का नाम कुछ नहीं लिया उन्होंने ये बोला कि कई लोग मुझसे नाराज है कि जो ताशकंद का समझौता हुआ है वो शायद ठीक नहीं हुआ है, तो जब मैं भारत आऊंगा तो बड़ी खबर लेकर आऊंगा। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज वर्ड यूज नहीं किया, नाम नहीं लिया किसी का। उन्होंने बोला मैं कोई बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा या बड़ा चीज लेकर आऊंगा, ऐसे बोला। तो दैट कैन नॉट मीन कि वो सुभाष बोस को लेके आ रहे हैं। तो इस कहानी का मतलब आधा है कि वो उनके बारे में शायद जानते थे, उनको शायद मालूम था, और लेकिन वो उनके बारे में कहा है मरते टाइम पे वो बात नहीं है। ठीक है, दिस इज माय आंसर। जी सर। और सर एक 2 क्वेश्चन हो रहे सर, छोटे-छोटे हैं सर। एक तो सुभाष चंद्र जी कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए सर, तो सर आज की डेट में हमारा पूर्ण स्वराज्य है या अभी भी कुछ पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या उनके पास है? ये गवर्नमेंट को बोलना पड़े, बिकॉज हम लोग कॉमनवेल्थ का तो हिस्सा है ना ऑलरेडी। इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। अभी अब रानी एलिजाबेथ मरेगी तो हमारे प्रधानमंत्री शॉट मारने जाएंगे वहां पे राजा को, नहीं को, तब मालूम चल जाएगा आपको कि हम लोग पूरे फ्रीडम है कि नहीं हमारे को। तो कहीं ना कहीं एक तार तो जुड़ा हुआ है ना। तो आपको सर कुछ नॉलेज है सर किस तरह की हम अभी बाउंडेशन में है उनके? बाउंडेशन तो नहीं होगी, लेकिन एक सिंबॉलिक लिंक है। तो वो तो ये तो पहले ही चेंज पंडित जी के टाइम पे चेंज हो गया था कि कॉमनवेल्थ हम लोग घुस गए थे, और हमने कॉमनवेल्थ में जो इंग्लैंड का जो राजा है, रानी जो भी है, उसको हमने अपना हेड मान लिया वहां पे। तो एक हल्का सा लिंक है, और तो कुछ और नहीं है। लोग तो कॉमनवेल्थ में आते हैं, छोड़ते निकल जाते हैं। तो एक सिंबॉलिक लिंक है। अब उसको सिंबॉलिक से अगर आपको हमें चिढ़ होती तो बात दूसरी, लेकिन सिंबॉलिक लिंक तो है हमारा आपके साथ। और जब रानी का देहांत होगा, जब रानी जी जाएंगी, रानी बहुत बुढ़ी हो गई है, भगवान करे उम्र लंबी हो उनकी माता जी भी 100-102 साल तक रही थी। तो लेकिन जब भी 5-7-60 साल 10-12 साल जब तक रानी है, रानी के जाने के बाद जब नया राजा इंग्लैंड में आएगा तो भारत के प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा सलूट मारने के लिए वहां पे। तो आपको मालूम चलेगा प्रोटोकॉल में, देखिए प्रोटोकॉल तो फॉलो करे, वो तो कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे कंट्री का मारेगा, विदेश जो हमारा आफ्टर इंग्लैंड तो हमारा मित्र अभी, तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोटोकॉल क्या फॉलो करेंगे वो देखना पड़ेगा उस टाइम पे। जी सर। रानी को हमारा अलग दर्जा मिलता है, ये तो जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जी जी है ना? जी सर। जी सर, थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो हमारे आईएनए के सैनिक थे ना सर, तो उनको क्या गवर्नमेंट को सौंपा गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस समय जब वो समर्पण किया था उन्होंने, मतलब उनको प्रिजन में डाला था सर? 45 में उनको लाकर दिल्ली में रेड फोर्ट ट्रायल चलाया था, उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में जिनको उन्होंने बोला व्हाइट, ऐसे बहुत से लोग जो आईएनए में घुस के उल्टे हो गए थे, उन्होंने गद्दारी की थी, या उन्होंने जाके बोल दीजिए हम तो आपके साथ में, ये तो हमको मजबूरी में उन्होंने डाल दिया यहाँ पे। तो जिन्होंने वापस अंग्रेज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसको तो व्हाइट बना करके उन्होंने फौज में ले लिया वापस। दूसरा आ गया ब्लैक, वो आदमी जो सुभाष बोस के और आईएनए की तरफ लॉयल थे, उनको उन्होंने फौज से निकाल के बाहर मार दिया और उन्होंने उनपे मुकदमा चला के उनको जो करना था करा वहां पे। तीसरे वो थे ग्रे कैटेगरी, बीच के, उसमें केस टू केस उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको अंदर ले चलना ले। तो बहुत से आईएनए के लोगों को उन्होंने फौज में ले लिया वापस, लेकिन वो लेने की कंडीशन ये थी कि ये आदमी अब सुभाष बोस पे लॉयल नहीं है। तो नॉट एवरीबॉडी हु वाज आईएनए वाज लॉयल टू नेताजी बाय द वे। बहुत से लोगों ने बिट्रे किया, बहुत से लोगों ने जान छुड़ाने के लिए फटाफट ज्वाइन किया और बाद में गद्दारी कर दी। जी जी। तो सिर्फ ये दावा करना कि मैं आईएनए में था, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े पेट्रियोटिक हैं। पूरी फाइल देखनी पड़ेगी आप। जी है ना? जी सर। ठीक है पंकज? जी सर, आपको शुभकामनाएं। आप बिल्कुल 11 तक पहुंचे सर। जी ठीक है, चलो थैंक यू। दीपक हाय, नमस्कार। वेयर यू लोकेटेड? नमस्ते सर, कैसे हो सर? बस ठीक है यार, थोड़ा सा अपना साउंड थोड़ा सा क्लियर करो, आपकी साउंड थोड़ी कम आ रही है। साउंड आपका कोई एडिशनल माइक नहीं आपके पास में? कोई एडिशनल हेडफोन माइक्रोफोन है कुछ? इस वक्त नहीं था सर मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज मुझे आ रही है लेकिन पब्लिक को, तो आप जल्दी सवाल पूछो, मैं आपका आंसर देके फिर वो करता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं ये पूछना चाहता था सर, नेताजी सर। आप हो कहाँ बात? आप हरियाणा में हो क्या? मैं इस वक्त तो सर टोरंटो में हूँ, बस वैसे मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। हाँ, तो आपका एक्सेंट पूरा हरियाणवी है यार। टोरंटो में हो सकते हैं, बट हरियाणवी आई कैन मेक आउट। हाँ हाँ जी, टोरंटो में। हाउ कोल्ड इज टोरंटो राइट नाउ? हाउ कोल्ड इज टोरंटो राइट नाउ? सॉरी सर, इन सेल्सियस हाउ कोल्ड इज इट देयर, आउट देयर? ओह इन सेंटीग्रेड अभी तो सर
-3-4 डिग्री के आसपास रहता है। 3-4 हो गया ना, अभी तो आप 20 तक हाँ। जाओगे, आप तो -20 तक जाओगे। हाँ, अभी फोरकास्ट आ रही है कि नेक्स्ट वीक से स्नो पड़नी स्टार्ट हो तो जाएगी। आ तो जाएगा, चलो। तो सर मेरा सवाल ये था सर, सर जब नेताजी रसिया गए, वो पूरी प्लानिंग से गए थे, जैसे कि आप भी कहते हैं कि उन्होंने पूरी थ्योरी बनाई प्लेन क्रैश वाली, और बिल्कुल तैयारी से वो गए थे वहाँ पे रशिया। तो सर रशिया में ऐसा क्या हो गया कि फिर सर वो बाद में बाहर ही नहीं आ सके, फिर उनको संन्यास लेना पड़ गया, मतलब नहीं, वो रशिया में जाके हुआ था कि वहां से उन्होंने अजाइलम लिया, पहले से पूरी बातचीत करके गए यहाँ से। लेकिन आप सारी तैयारी कर सकते हैं एडवांस में, लेकिन फ्यूचर में क्या घटेगा वो आपके हाथ में नहीं है। सर्कमस्टेंसेस कैसे बदलेंगी, चेंज होंगी। फिलहाल तो वो आदमी वहां से बच के निकला था अजाइलम लेने के लिए कि लड़ाई खत्म होगी, और उन्होंने खुद किसी को बोला था वहां पे जो कि हमें 5 या 10 साल भारत के बाहर रहना पड़ेगा। तो एक तो ये हुआ, तो वहां गए। उसके बाद में सर्कमस्टेंसेस का खेल होता है कि सर्कमस्टेंसेस कैसे बदलती हैं, क्या चेंज होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि वहाँ ग्रे एरिया है। क्योंकि ऑन द होल अगर आप गुमनामी बाबा की थ्योरी को देखेंगे तो उन्होंने तो बोला कि मेरे को तो बहुत अच्छा संभाल के रखा उन्होंने, लेकिन बीच में हल्का हल्का एक जगह पेंच आ रहा है कि शायद बीच में, शायद किसी एक टाइम पे हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो कि बीच में टॉर्चर की बात आ रही है। अगर वो थी भी तो पहले में थी, बाद में नहीं थी। कि बाद में तो उन्होंने बोला कि मेरे रिश्ते काफी अच्छे थे उनके साथ में, उन्होंने बातचीत की कि मैं ओपेरा देखने गया खुश्चेव के साथ में, उठना बैठना मेरे बड़े लोगों के साथ में था। वो बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करते हैं कि मैं पार्टियों में जाता था वहाँ पे लोगों के साथ में। फिर बाद में उनका मैंने बहुत मदद करी, वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो है कि वो सर्कमस्टेंसेस का खेल है कि हालात सिचुएशन में क्या करते हैं क्या नहीं करते। और हालात में यहाँ बहुत से प्लेयर्स थे, भारत में हालात क्या थे, इंग्लैंड में हालात क्या थे, वो थे। तो ये हालातों के उस पर था। तो वो तो प्लानिंग सिर्फ 2-3 साल ही कर सकते थे, उसके बाद तो ये पूरा खेल सर्कमस्टेंसेस का था। सर्कमस्टेंसेस और फ्यूचर कौन कंट्रोल कर सकता है। और सर जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुकी थी तब भी तो सर उसके बीच में भी तो सर वो बाहर आ ही सकते थे ना देश में। तो अगर वो छुपने की जरूरत क्या थी, अगर वो बाहर नहीं, वो बाहर अगर छुपने की, फिर वो अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता ही है कि 3 आपके वो एक्सिस पावर्स के जितने ग्रुप बचे थे उनको निकाल निकाल के मारा गया। वॉर क्राइम्स ट्रायल चले यहाँ पे जर्मनी में, फिर आपके जापान में और इंडिया में, 3 जगह पे उस टाइम पे। तो और वॉर क्राइम्स के ट्रायल में कल से ओडिंचास तक चले, तो ओडिंचास तक तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता उस आदमी का जो ये मान के चल रहा है कि मैं वॉर क्राइम पे मैं इम्प्लीकेट हूँ। तो 49-50 तो वैसे ही नहीं आ सकता बाहर वो। उसके बाद भी इतनी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है उसकी पूरे केस में। फिर वो जो उसने जो एलिगेशन लगाया एक के बाद एक सरकार के ऊपर यहाँ पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट को फ्री नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, आपकी आर्मी उनके हाथ में थी। हाँ, 55 तक, आपका 56 तक एयरफोर्स चीफ आपका 56 में बना देसी पहली बार में, 58 तक आपकी वो अंग्रेजों के पास थी, इंटेलिजेंस आपकी उनको रिपोर्ट कर रही थी। तो वो यहाँ पे आएगा तो मारधाड़ मचेगी ना। अभी मैंने पहले ही बोला था कि अगर वो बाहर निकल के आते हैं तो सब लोग तो उनके सपोर्ट में नहीं है ना। बंगाल में नहीं थे, बंगाल में बीसी रॉय का जमाना था, बीसी रॉय तो कांग्रेस ही था। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि वो बीसी रॉय के सपोर्ट में थे, वो सुभाष बोस के सपोर्ट में तो नहीं थे ना, बीसी रॉय तो कांग्रेस ही था। हाँ जी। तो फिर वहां वो सुभाष बोस निकल के आएंगे तो 50% बंगाल उनके खिलाफ होता उनके। वो तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि उसमें कितना इंटरेस्ट अभी वहां पे है, कितना नहीं है। अगर यही चीज किसी और जगह पे होती तो कितना बवाल मच चुका होता। तो वो कैसे निकल के आएगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सब लोग उनके फेवर में थे, नहीं, सब लोग उनके फेवर में नहीं थे, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। हम फेवर में काफी लोग हैं, लेकिन सब फेवर में नहीं थे। कांग्रेस के लोग फेवर में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी फेवर में नहीं थी उनके, बाकी लोग में को खास उनका फेवर नहीं था कोई। मेजोरिटी तो है सर, फिर भी नहीं मेजोरिटी है पर टक्कर तो, लेकिन अगर मेजोरिटी ना भी, अगर 50-50 मान के चल लो आप, तब भी तो भिड़न तो होगी ना। हाँ जी। मेरा मानना जैसे कलकत्ता में 90-10 का आंकड़ा है कि 90 लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 10% को इंटरेस्ट है, तो 10% वाले क्या कर लेंगे। कल को 50 कर लेते, चलो 50% को इंटरेस्ट है तो 50-50 में तो लड़ाई मचेगी ना, 50-40-60 में लड़ाई मच जाएगी बड़ी जबरदस्त। तो वो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो लोग मेरी वजह से तकलीफ होगी। दैट वाज वन रीजन ही कुड नॉट कम आउट। यही है सर। और एक और बात थी सर, आप टोरंटो बैठ के आप इतनी अच्छी बातें सोच रहे हो। एक और बात थी सर, बुरा भी लगता है सर कि इतना बड़ा नेता जिसने सर आज़ादी के लिए इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए अपना घर बार छोड़ दिया,
लोग सर आज बात भी करना नहीं चाहते सर उस चीज के बारे में, इतने साल हो गए। नहीं कर रहे हैं, आपने भी आप कर रहे हो कितने यार, ये मत बोलो कि लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग इतने यंग लोग सब कर नहीं रहे, आप टोरंटो से कर रहे हो बात। और एग्जैक्टली जो आपने अभी बोला, एग्जैक्टली ये फीलिंग मेरी फीलिंग है, जिस फीलिंग से मैंने ये 2001 में मैं था, एग्जैक्टली दैट इज द फीलिंग व्हिच आई हैव। एंड और जिस दिन ये फीलिंग हमारे ऊपर के लोगों तक पहुंच जाएगी, ये केस खुलना शुरू हो जाएगा। वही बात है सर, हमारी आपने भी प्रॉब्लम ये है कितने कि वो सारे कॉमन एविडेंस मैन पेश को किए। इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं जा रहा। हाँ जी सर। तो वो हमको चैलेंज है कि आने वाले टाइम पे हमने कोशिश की थी, हम लोगों ने पीछे बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन उसमें गलती ये हो गई कि हमारी पूरी जो हमारा मूवमेंट चला था उसकी कमान नेताजी के परिवार के लोगों के हाथ में थी, और उनका इंटेंशन पहले था कि फैजाबाद की स्टोरी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने पूरा केस को उन्होंने घुमा दिया। अब की बार हम जो मूवमेंट खड़ा करेंगे हम उनकी फैमिली को उसमें नहीं रखेंगे, उसका भी हमें पता कि क्या गड़बड़ हुई थी। तो अब की बार हम लोग अपने हाथ में रख करके जैसे तो एक अवेयरनेस करके पॉलिटिकल क्लास को इसको सेंसिटाइज करना है इस केस पे, तो फर्क पड़ेगा मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम पे। और जब तक बीजेपी है तब तक ही उम्मीद है सर कुछ होने की, क्योंकि अगर बीजेपी कांग्रेस आ गई फिर तो बीजेपी में कम से कम एडवांटेज है कि बीजेपी के बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। बीजेपी का जो रैंक एंड फाइल है, जो उनको सपोर्ट कर, रैंक एंड फाइल जो लोग हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के नेता सपोर्ट नहीं करते जो पावर में आ जाते हैं, लेकिन उनका रैंक एंड फाइल सपोर्ट में है। हाँ, और बड़े का भी एडवांटेज ये, मैं उन्हें क्रिटिसाइज करता हूँ बहुत जगह, लेकिन बीजेपी का मुझे लोग बार बार बोलते हैं कि आप मोदी की बात कर रहे हो कुछ, उनको ये पता नहीं है कि राजीव गांधी के टाइम पे हालत क्या थे देश के, उनको पता नहीं मनमोहन सिंह के टाइम पे हालत क्या थे, कि मैं खड़ा होकर आज जाके दुनिया भर में लेक्चर दे रहा हूँ, तो मोदी जी का जमाना तो लेक्चर दे रहा हूँ भैया। हाँ जी। हाँ जी। कल को वही राहुल बाबा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सब लेक्चर सब बंद हो जाएंगे। फिर तो जो बैठ के मुझे फेसबुक में कमेंट मारते हैं, बैठ के 3-4 बंगाल से, कभी आके बात नहीं करते लाइव में, जब मैं उनकी पेंट उतारूंगा यहाँ पर रख के कि बेटा तुमने कितने लेक्चर किए सुभाष बोस पे जब तुम्हारा सीपीएम का राज था वहां पे है। पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के आगे पीछे नाचने वाले, कम्युनिस्टों के तलवे चाटने वाले आज हमको बता रहे हैं सुभाष बोस के बारे में क्या करना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम है ना, वो बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप खुल के बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हैं सर। इंदिरा गांधी को गाली देके दिखाते हैं आप लोग पब्लिकली, जैसे आप लोग गाली थे ना मोदी को सुबह शाम गाली दे रहे हैं, इंदिरा के टाइम पे दे के दिखाते ना, तुम्हारे घर में आईबी की रेड पड़ती शाम को। और आयरनिकली ये और लोग बोल रहे हैं कि इंटॉलरेंस बीजेपी सरकार में ज्यादा है। अरे तुम कुल्लम कुल्ला उसकी माँ बहन एक सुबह शाम कर रहे हो मोदी की ट्विटर फेसबुक पे, तुम उसको गुजरात में उसका तुम नाम घुसेड़, जबकि 6 इंक्वायरियां हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, सीबीआई ने छोड़ दिया, करवाने वाले कांग्रेस ही थे, 8 घंटा बैठी से इंटरोगेशन होगी, अभी आपको चैन नहीं पड़ रहा, नहीं हमें हम नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। और सुभाष बोस के बारे में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, क्योंकि वो लीगली टेनेबल है, तो जब वो तो इस तरह के लेवल है कि वो इनके ये उन कांग्रेस से लाख गुना अच्छे हैं। मैं उनसे खुश नहीं हूँ नेताजी वाले काम को लेके, मैं उनको सुबह शाम झाड़ रहा हूँ, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। बहुत, बस एक उम्मीद है कि एंड में जाके जब इनको लगेगा कि शायद ये मुद्दा बाहर आने से हमको कुछ फायदा होगा। उम्मीद तो है, उम्मीद तो इनसे ही उम्मीद है, मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उसके बाद तो सर कुछ उम्मीद भी नहीं है इस चीज की। राहुल बाबा बनने का पीएम तो भैया मुश्किल है फिर तो। नहीं सर, फिर तो पहले निकल वाले, ठीक है, फिर तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है सर। चलो दीपक, थैंक यू। बाय बाय। या शिव हाय। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते शिव, हाय। कैसे हैं सर? ठीक है यार, अभी तो ऐसे ही है। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं नोएडा से ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी सर, मेरा थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली इनको लेके, और जो मुझे बोलो यार, वो फ्री, हम लोग आपसे ये मैं अड्डा मार रहा हूँ, आप ये समझो कि मैं आपके घर में बैठा हूँ, जो सवाल पूछना है पूछो, अगर मेरे को जवाब नहीं देना होगा तो मैं नहीं दूंगा। एक तो सर कि अगर एक तो नेहरू जी की जगह अगर आपके थ्रू और लोगों को बोल रहा हूँ कि कई लोग आकर के, जैसे मेरे कई दोस्त हैं, मतलब जी क्रिटिसाइज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एब्सोल्युटली ओके, आप क्रिटिसाइज करो, सब कुछ करो, वो जब तक गाली नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पब्लिक को बता रहा हूँ कि कई लोग आकर के फेसबुक में क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि भैया तुम आओ ऑनलाइन में, मुझसे ऑनलाइन बात करो, कोई टेंशन नहीं है, और मैं किसी का बुरा नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर लगता है, और उसी के बहाने मुझे क्लैरिफाई करने का मौका लग जाता है। वो ट्विटर मतलब फेसबुक में लिखने का टाइम नहीं है, मैं बैठ के समझाऊं कि वो है कि कितने पैसे खाए मैंने, ये करके वो करके, मोदी का सपोर्टर हूँ कि नहीं हूँ, ये है वो करके, मैं सब आंसर दे दूंगा। आप
लाइव पूछिए आकर के यार, कोई टेंशन नहीं। और ये कोई ऐसा नहीं कि आप मुझे नेगेटिव सवाल पूछोगे तो मैं आपसे बुरा मान जाऊँ, कोई बुरा नहीं मानता भैया, मैं जर्नलिज्म में रह चुका हूँ, पब्लिक में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। डेफिनेटली सर, आई नो और वेरी मेरे वेल। दोस्त हर जगह है, मेरे दोस्त हर तरह के हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें दोस्ती यारी का इसमें कोई लिंक नहीं है उसमें कुछ करके। तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी क्रिटिकल क्वेश्चन। इनफैक्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस आर बेटर बिकॉज देन आई हैव द चांस टू आंसर, क्लैरिफाई। बताओ। एक्चुअली नॉट क्रिटिकल, हाइपोथेटिकल एक्चुअली आई सेड। हाँ चलो। हाँ एक सरदार पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर होते सर नेहरू की जगह, तो क्या ये संभावना थी कि नेताजी बाहर आते? क्योंकि ये तो हम लगभग सब मान चुके हैं कि ही वाज नॉट डाइड इन प्लेन क्रैश, इट वाज सुधार ब्लफ थ्योरी। तो अगर वो होते तो क्या चेंज होता? अनफेयर थिंग फॉर मी टू आंसर बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड हिम मच। लेकिन जो छोटी मोटी स्टडी मैंने की है उसमें देख के 2-3 बातें निकल के आ रही है। पहली बात तो ये, सरदार पटेल वाज मोर रियलिस्टिक देन चाचा नेहरू, नंबर 1। बट उनका नेगेटिव ये था कि सरदार पटेल वाज ऑलवेज अलाइन विद महात्मा गांधी ऑल हिज लाइफ। तो वो नेगेटिव है। पंडित जी थोड़े फ्लेक्सिबल थे क्योंकि पंडित जी वाज सुभाष बोस फ्रेंड एक्चुअली अंटिल 38। पटेल वाज नेवर हिज फ्रेंड। सुभाष वाज लिंक्ड टू सरदार पटेल एल्डर ब्रदर। तो उनके फेवर में ये है कि भाई वो थोड़े प्रैक्टिकल थे, और उनके अगेंस्ट में ये है कि वो थोड़े वैसे थे। तो मुझे पता नहीं कि वो निकलने के बाद में वो क्या करते क्या नहीं करते। तो बड़ा मुश्किल है जवाब देना कि अगर पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या होता। अच्छा, दूसरी चीज जो अभी आपने पहले बात की पंकज एज ऑफ जी, नाउ मतलब अगर आप गुमनामी बाबा के निगाह से देखेंगे तो वो तो इन सबको बराबर खड़ा करता था। हाँ, लेकिन उसने स्पेसिफिकली अगर किसी को गाली दिया तो पंडित जी को दी है। मतलब उन्होंने पंडित जी के अलावा किसी और को गाली नहीं दिया उन्होंने। इवन इंदिरा को भी बुरा नहीं बोला। गाली का मतलब बुरा उनके बारे में उल्टा सीधा बोला है। डेफिनेटली सर। तो उन्होंने बुरा भला राजीव गांधी को भी नहीं बोला। तो इस मामले में तो कि शायद तो डेफिनेटली पटेल वुड हैव बीन बेटर, बट हाउ फार बेटर आई कैन नॉट कमेंट, इट्स टू हाइपोथेटिकल एज यू सेड। शिव, you are gone from the screen. आदर्श नमस्कार, आइए पारिक। सर, am I audible? यू ऑडिबल, थोड़ा सा हल्का सा आवाज कम आ रहा है आपका। बोलिए आदर्श, कहाँ पे आप? अच्छा, बाय द वे मेरा अब 1 घंटे का स्लॉट पूरा हो गया। मैंने लोगों को बोला था कि मैं 1 घंटा बोलूंगा, तो अभी मैं 1-2 सवाल लेके छोड़ रहा हूँ आज, ठीक है? तो लेकिन मैं रेगुलरली आपके पास आता रहूंगा बीच में। आदर्श, कहाँ से बोल रहे हैं आप? Sir, I'm from फ्रॉम? आवाज कट रहा है। sir Mumbai. मुंबई, ओके Mumbai. ओके। मुंबई Sir में from Mumbai. Yeah. मुंबई में किधर हो अभी आप? लोकेशन Sir मुंबई for में? Mumbai, sir. हाँ, Kandivali West. अच्छा, प्रॉपर बात तो सिटी के अंदर हो पूरा। So there is a area Kandivali. अच्छा, Yeah. It's a western suburb. ईस्टर्न सबब, ओके, यू आर आउटसाइड द मेन सिटी। Sir, actually, it's actually within the limits. It's on the western suburbs. Kandivali is located, which comes under jurisdiction, and it's on in western suburb. It's a western suburb. चलो सवाल पूछो। आपकी आवाज नेटवर्क थोड़ा I खराब है, wanted आपकी to नेटवर्क। connect with you from a very long time. So let me just try to make some problem with the headset. Sir, can you hear me now? No, it is the Is it problem is better? not with the headphone. The problem is with the net, your connectivity. आपका जो नेटवर्क है वो वीक है, क्योंकि आपकी फोटो भी कट के आ रही है बीच में, और आवाज आपकी रुक रही है। आप फटाफट सवाल पूछो, मैं उसका आंसर देके फिर I'll be able to answer the question. Please, the question. Yeah, sir. Actually, before that, I just wanted to share a few things. I have been watching a lot of your videos, and actually, I first watched your video on India Speak. I think I've lost you. That from a very long time, from about almost last 2 years, and I have tried to almost watch all the videos that you have posted yet.
And so, sir, just want to say that you and your entire team has done a great job doing a research on this topic. No one was really interested in this, and you have, it has taken lots of years for you to, do this such an extensive research on a topic that was, almost dead. No one was interested, but because of you and your entire team and the research that you have done, that uh, still not everyone is educated, but there is at least a few set of people who are aware about this topic. And काफी को आदर्श अब ऐसा है ना कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल गुमनामी वाली कहानी किसी को नहीं मालूम थी, अब Yes. बहुत बड़ा साइजेबल नंबर लोगों को पता है। तो ऐसा नहीं, हमने इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल वी हैव रीच्ड लॉट ऑफ पीपल। अवेयरनेस तो हमने क्रिएट कर दी, लेकिन वो अवेयरनेस पॉलिटिकल क्लास में हम उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी अवेयरनेस है। अभी मैं आज किसी से बातचीत कर रहा था, मुखर्जी कमीशन जब बनने के लिए लोगों ने एफर्ट मारे, बंगाल के पॉलिटिशियन ने, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने, तो उसमें सपोर्ट करने वाले पवार सर भी थे, शरद पवार ने भी सपोर्ट किया, और अपने बीजेपी के लोगों ने भी, गोपीनाथ मुंडे ने भी सपोर्ट किया, और प्रमोद महाजन वॉज पार्ट ऑफ द पीएमओ। तो एक बार जब वो माहौल चलेगा तो पूरे देश में वो होगा, लेकिन है कि वो पॉलिटिकल क्लास तक पहुंचने का शायद मेरे में वो हिम्मत, अभी मेरे में क्लाउड नहीं है कि मैं तो कोई नेता नहीं हूं कि मैं जाके पार्टी के लोगों से मिलूं, दूसरी पार्टी के लोगों को बोलूं कि भैया आप सपोर्ट करो, क्योंकि ओवरऑल कोई भी पार्टी इसमें खिलाफ में नहीं है इसके। थोड़े कांग्रेस वाले करते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो भी परेशान में नहीं है। तो कि थोड़ा सा अवेयरनेस तो हो गई है, लेकिन उस अवेयरनेस को हमने सेकंड लेवल पे लेके आना है कि ये अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करना है पूरे पार्लियामेंट के अंदर, कि जहाँ एमपीज खड़े होकर के समझदारी से इशू को उछाले। Yes, definitely, sir. वो हम कोशिश कि अगर हम लोग बंगाल से, क्योंकि आफ्टर ऑल सेड एंड डन सबसे ज्यादा सपोर्ट नेताजी की बंगाल में ही है, तो अगर वहां से भी अगर हम लोग कुछ 4-5 एमपी इकट्ठा करके बोलें कि आप लोग पार्लियामेंट में एक टीम बना के खड़े हो जाओ, तो जहां वो टीम जिस दिन शुरू होगी बोलनी, उसको सपोर्ट करने के लिए एमपी पूरे देश से आ जाएंगे। Yes, sir, तो वो हमारा वो प्लान है कि हम उसको कर सकते हैं अगर हमारी हिम्मत हुई तो। थोड़ा कोविड बीच में आ गया तो मेरे सारे लेक्चर बंद हो गए, अब लोगों से मिल सकते हैं। तो ये भी मैंने देश गैप हो गया उसमें, बहुत गैप हो गया यार, पूरा काम रुक गया ना, मिलना बंद हो गया। मुंबई में आने का मेरा प्लान था, मैं हैदराबाद गया था, मेरी लास्ट बातचीत मुंबई में टॉकी चल रही थी, कलकत्ता IIM में और मुंबई के अंदर, कोविड होने के बिल्कुल एकदम पहले, लॉकडाउन से पहले। सब बंद हो गया। अब तो है कि अगले साल भी पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता, पता नहीं। Yeah, definitely, sir. I wish you all, yeah, definitely. My best wishes with you. Sir, just one question. Sir, movie जो आपने बनाया, means basically the entire team and the movie that was made, Gumnami. It is such a beautiful movie, and it is so well directed, acted, everything. So I just have one question, sir. That because basically our motive is to spread this issue, like make this a widespread issue amongst all the people of our nation. So I just wanted to ask you, why did you not approach Vivek Agnihotri for this movie? No, I did not approach anybody for that matter. ये तो प्रोजेक्ट अपना श्रीजीत मुखर्जी का प्रोजेक्ट था, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। हम लोग पब्लिक में बात करते हैं। मुझे आई कैन टेल यू कि मुझे पहला बार किसी ने फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था अपने अनुराग कश्यप जी ने। अनुराग कश्यप जी का लिंक है गुमनामी बाबा के साथ में, ठीक है। तो मेरी अनुराग जी से 1.5-2 घंटा बात हुई थी, लेकिन ये 2007 कांग्रेस के टाइम की बात है, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। वो काफ़ी लेवल तक बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। उनकी ईमेल्स में अभी पड़ी होंगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में ये श्रीजीत मुखर्जी का ये आइडिया था इस पे फिल्म बनाने का, तो वो मेरे को अप्रोच किया। तो फिर मैं और चंद्रचूड़ उनके पास में गए, हम लोगों ने उनको अपना डाटा रिसर्च दिखा करके उन्होंने फिल्म बनाई। फिल्म आपको अच्छी लगी? फिल्म का एक बात बताऊं, जिस मजबूरी में उन्होंने फिल्म बनाई है, प्रेशर के अंदर प्रेशर था, उनके ऊपर कोर्ट केस कर देंगे, ये है फलाना ढमकाना, कंट्रोवर्सी है, बड़ा इशू, बड़ा अजीब सा बंगाल के अंदर वहाँ पे, और उनके पास में टाइम नहीं था, बजट बाद में स्लैश हो गया। तो इतने कम पैसे में और इतने, मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना लगा पूरी फिल्म बनने में। तो पता है, मानोगे इस बात को आप? 1 महीने फ्लैट। यहाँ फिल्में बनने में 2-2 साल लगते हैं। उस आदमी को अगर टाइम मिल जाता और पैसा मिल जाता
जैसे फॉर एग्जांपल वो जो प्लेन क्रैश का सीक्वेंस था कि वो जहाज में गिरेंगे और वो बहुत जबरदस्त, बहुत हाई लेवल पे शूटिंग करने वाला था वो बकायदा ग्राफिक डाल के फॉरेन कंट्री से लेके उन्होंने उनका प्लान था कि प्रॉपर एक्सपर्ट लेकर आएंगे उसका अब फिल्म वाज सपोज टू बी इन हिंदी, बाय द वे इट वाज सपोज टू बी हिंदी फिल्म डब्ड इन बंगाली, लेकिन वो एकदम से बजट के चक्कर में वो पूरा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी वो स्लैश हो गया। नहीं तो ये, लेकिन श्रीजीत मुखर्जी ने फिल्म बहुत जल्दी बनाई है, महीने भर में सारी शूटिंग कर दी उसने, 15 दिन वहां शूट किया, 15 दिन यहाँ शूट किया, कहानी खत्म। इतने पावर, इतने प्रेशर में, इतने कंस्ट्रेन में, वो भी गर्मी की हाइट में जाके शूटिंग की फैजाबाद वेदर में, क्योंकि टाइम नहीं था। आइडियली हमको सर्दी में करनी चाहिए थी। उस प्रॉब्लम ये होती कि सर्दी के चक्कर में उनको जो मेकअप था रबड़ का लगा रखा था मुंह पे, तो उनको जो प्रसन्नजीत चटर्जी है बम्बा था, उनको बहुत प्रॉब्लम हो, खुजली बाबा मुझे बताते कि मुझे खुजली हो रही है, क्योंकि मैं इतनी गर्मी का मौसम, वो भी आपको मैं ले जाऊं यूपी के अंदर, और इतना मुश्किल था मैं, लेकिन टाइम नहीं था कि जो शूटिंग करनी है अभी शूटिंग करनी है, सर्दी का इंतजार नहीं करना। तो दिस इज अ वेरी रिमार्केबल फिल्म इफ यू नो द बैकग्राउंड ऑफ इट। पर अच्छा, आपको अच्छी लगी वहां पे? फ्यूचर में मुझे बॉम्बे में फिल्म कोई बनेगा नहीं, मजा नहीं आएगा इस पे, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि फिल्म वाले कोई ना कोई बॉम्बे में इसको फिल्म उठाएंगे कभी ना कभी। लेट्स होप दैट सर, क्योंकि वो मैक्सिमम रीच तभी मतलब होता है। मैं ये सोच रहा था सर, बिकॉज ताशकिन was made by Vivek sir, so I was just thinking why you did not collaborate with him. No, he knows, no, of course he knows about it, he knows about it, वो सब है। वो तो फिर एकता कपूर को ही पता है किसके, उनको भी गुमनामी बाबा की कहानी बड़ी अच्छी लगी, वो तो सीजन का सेकंड पार्ट उनके दिमाग में है, पहले वो भी फिल्म लाने की सोच रही थी बहुत पहले, अब क्या है मुझे पता नहीं, बट ये कि उनके भी दिमाग में बात है, शी इज अवेयर एंड दे नो वेरी वेल व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो आई होप एंड प्रे इन नियर फ्यूचर देयर इज अ प्रॉपर बिग बजट मूवी इन बॉम्बे ऑन दिस इशू, जिसको आप हिंदी बनाओ और तमिल में डब करो, बहुत जबरदस्त चलेगी पूरे देश में, पर बड़ा बनना चाहिए, छोटे मोटे की बस का नहीं है ये। हाँ, yes exactly sir, and many people will get to know the real yes, उस लेवल पे होगा, उस लेवल पे होगा। ठीक है, चलो, एनी हाउ, गुड नाइट टू यू। थैंक्स सो मच सर। चलो, थैंक यू। अब मैं आर्यन को ले रहा हूँ और आर्यन को लेने के बाद मैं बंद करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं 1 घंटा बोलूंगा, ये हो गया है 11:07। ठीक है, तो आर्यन को लेके बंद। और उसका एक ये है कि मैं आऊंगा काफी बार, मतलब वीक में, कल भी शायद मैं आ रहा हूँ, तो वीक में 3-4 बार आऊंगा, लेकिन मेरा टाइम फ्रेम घंटा भर के आसपास रहेगा, प्लस माइनस इधर ऊपर मुझे। तो भैया बुरा मत मानना, जो नहीं आ पाया, अब नहीं आ पाया। मेरे को 2 घंटे मैं नहीं बोलूंगा, कि 2 घंटे का फायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, लोग आधे 1 घंटे बाद छोड़ना शुरू कर देते हैं स्ट्रीम को। तो लेट्स कीप इट टू 1 आवर, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा इसके में, फ्रीक्वेंसी की हर सेकंड डे, थर्ड डे, वीक में 4 दिन में मैं आने को तैयार हूँ। बताओ आर्यन। थैंक यू सर। मैं भी कोच्चि में हूँ। अच्छा, वैसे आता हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ कोच्चि में। अच्छा, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने एक वीडियो में बताया है कि कोच्चि में, लेकिन मैं कोच्चि में होटल के अंदर रहा, मैं होटल में एक प्रेजेंटेशन देने आया था। कब सर? probably last year होगा, अर्ली लास्ट ईयर। तो होटल में रह के बस वहीं से चला गया। कोच्चि का एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, आपके नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा। हाँ, कोच्चि का जो एयरपोर्ट है, हाँ, बहुत सुंदर बनाया, कि उसमें बहुत से ट्रेडिशनल डिजाइन बना रखे ना उसमें। ये तो नॉर्मली एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, इसमें काफी इंडियन लुक है बीच में। वैसे आप केरला घूमे तो केरला घूमने में आपको बहुत यूनिक लगेगा, काफी ट्रेडिशनल फील देता है। नहीं, मुझे बोलो, हमारा एक जोड़ीदार कहीं का है ना, श्रीजीत पाणीकर, तो मैं त्रिवेंद्रम में गया था उसके पास में, फिर वहां से हम पौनमुडी हिल में गए थे। पौनमुडी हिल मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा हमारे को। तो वेस्टर्न घाट का सारा इलाका, जहां तक मुझे पता है कि आप एक बार आप नासिक से निकले, आप मुंबई से भी आप चलो और नासिक से निकल के जो वेस्टर्न घाट की बहुत अच्छी ब्यूटी है। मैं वैसे महाराष्ट्र में हूँ, मैं केरल में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सब जगह घूमा हूँ लगभग। हाँ, मगर वेस्टर्न घाट की ब्यूटी बहुत अच्छी है, वो तो है, वो तो इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो केरला में मैंने कोल्लम देखा है, कोच्चि देखा है, त्रिवेंद्रम देखा है, और पौनमुडी हिल्स गया हूँ। तो ये 4 जगह में गया हूँ। फ्यूचर में हम बिल्कुल इरादा आने का है, अब ये हालात तो ठीक हो यार। और मैंगलोर भी आपका बिल्कुल पड़ता है बॉर्डर पे केरला के। म्यांमार यहाँ से शिप से शायद 8 घंटे लगती है। बैंगलोर नहीं, अच्छा,
मैंगलोर इज मैं एब्सोल्युटली ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला, तो वहाँ की पूरी टोपोग्राफी और पूरा जो है ना वो केरला का फील आता है मैंगलोर के अंदर। चलो बताओ, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, व्हाटएवर। मेरा आज क्वेश्चन मैं था आपको सर कि आपने एक बार बताया था एक वीडियो में कि सुषमा स्वराज जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी हाँ। और वो जब रसिया गई थी तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का इशू वहां पे उठाया था। उन्होंने इस पे- रशियन काउंटर पार्ट से उठाया, वो रशिया में उठाया था, ये यहाँ उठाया था हमें पता नहीं, लेकिन अपने जो उनकी रशियन विदेश मंत्री से बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुद्दा उठाया था, ये पब्लिक में आया था। मैं उस टाइम अमेरिका में था तो ये स्टोरी फ्लैश हुई थी, तो मैंने वहीं देखा था कि सुषमा स्वराज ने अभी कोई अपडेट है सर इस पे? उस पे रसिया अपडेट का- ये है, उस पे अपडेट ये है कि ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये 2015 में फ्लैश हुआ न्यूज कि सुषमा स्वराज, क्योंकि पहली बात है कि जब हम लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, मोदी जी के परिवार, मोदी जी और नेताजी के परिवार और हम लोग मोदी जी से मिल रहे थे, तो मोदी जी ने हमारे सामने, मैं उसका गवाह हूँ, मेरे सामने उन्होंने बोला है, जैसे आप बोल रहे हैं, सामने बिल्कुल बोले कि मैं पुतिन से बात करूंगा इस केस पे, मैं उससे मिल रहा हूँ दिसंबर में। तो ये बात थी अक्टूबर 2015 के आसपास की, तो इसका मतलब वो दिसंबर में उन्होंने बात की होगी। क्या बात हुई हमें नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। उसके थोड़े दिन के बाद में अक्टूबर के ही महीने में सुषमा स्वराज ने पब्लिक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है विदेश मंत्रालय ने कि सुषमा स्वराज ने सुभाष बोस के बारे में रूस के विदेश मंत्री से बातचीत करी है। उसके बारे में 5 साल बाद सरकार ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि हमने रूस गवर्नमेंट से बातचीत की और रूस गवर्नमेंट ने हमको बोला कि हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अंदर की बात यह है कि सुषमा स्वराज की क्या बातचीत हुई है वो किसी को टॉप सीक्रेट है, लेकिन एक जवाब दिया जाता है पार्लियामेंट में कि रशियन गवर्नमेंट ने कुछ मतलब बोला कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। उसकी वैल्यू क्या है उसका मैं आपको भी आंसर देता हूं आपको। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू ये है कि जब मैंने विदेश मंत्रालय को सूचना के अधिकार में एक सवाल पूछा था 2009 के आसपास कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के मरने पे विदेश मंत्रालय में जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपी मुझे दी जाए, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भारत के विदेश मंत्रालय के पास में अपने प्रधानमंत्री के मरने के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रूसियों ने क्या इन्फॉर्मेशन बांटने की दुकान खोल रखी है क्या सुभाष बोस के ऊपर? वो क्यों देंगे आपको इन्फॉर्मेशन? और वो सर आसान नहीं है। वो जब तक सुषमा स्वराज ने क्या बातचीत की क्या नहीं की उसके पूरे रिकॉर्ड बाहर नहीं आते मैं कमेंट नहीं करूंगा। और आई वांट टू नो कि मोदी जी ने जब हमको हमारे सामने बोला था कि मैं बात करूंगा पुतिन से, अगर किया पूरा लेखा जोखा और नहीं किया तो उसका लेखा जोखा। तो जब तक ये सारे पेपर हमारे सामने ना हो जाए मैं उस पर क्या कमेंट पास करूं? मुझे भारत सरकार पे विश्वास नहीं है। अच्छा, अभी करंट गवर्नमेंट पे भी नहीं? मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो सर कोई भी इनका विश्वास नहीं है। में एक लास्ट में करंट गवर्नमेंट पे आप ये कहते करंट गवर्नमेंट जो मोदी जी की गवर्नमेंट है कांग्रेसों से बहुत अच्छी है। मैं नेताजी की बात कर रहा हूँ, औरों की बात नहीं कर रहा उस मामले में, लेकिन हमारी उम्मीद थी उसमें तो बिल्कुल फेल है। और सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि ताशकंद फाइल जो मूवी आई थी उसमें लास्ट में एक इमेज फोटो दिखाया गया है जिसमें शास्त्री जी के साथ सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हैं। फेमस हो गया वो मेरी रिसर्च में तो है नहीं, मैंने कभी कहानी फोटो उनकी वो है तो लोग यहाँ वहां से पिकअप कर लेते हैं, फेमस हो गया करके कहानी, तो मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। फेक है या फिर क्या है? वो सच्चाई नहीं है, फेक नहीं है, रूमर्स है। देखिए ऐसा होता है कि ये होता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है आपस में शास्त्री वाला, कि शास्त्री के परिवार ने और बहुत लोगों ने बोला कि शास्त्री जी के मरने के पीछे सुभाष बोस की कहानी जुड़ी हुई है, और ये बात लोग 40 साल से बोलते आ रहे हैं। आप जब चीजों को दबाते हैं, चीजों को छुपाते हैं, तो चीजें इस तरह से निकल के आती हैं। कुछ कई बार वो ठीक आती है, कई बार गलत आती है। जैसे लोगों ने एलिगेशन ये भी लगाया था कि सुभाष बोस को हैंडओवर करने का इन्होंने पैक्ट किया, जिसमें महात्मा गांधी इन्वॉल्व है। जब चीजों को छुपाएंगे तो डिक्लासिफिकेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सारी बातों विराम लग जाता है। तो ये इस तरह के रूमर्स हैं, दावे हैं, वो हैं, बट मैं इस पर्टिकुलर वन को सपोर्ट नहीं करता। मैं ये सपोर्ट करता हूँ कि शास्त्री जी को मालूम था वो जिंदा है, उसका हिंट मुझे मिल रहा है एज ए पत्रकार। लेकिन वो ताशकंद में उनसे मिले थे? नो, क्योंकि ताशकंद तो वो गए थे शायद 66 में। हाँ। और आपके अकॉर्डिंग सुभाष चंद्र बोस थे वो 55 तक इंडिया आ गए थे।
नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 66 में वो यूपी के अंदर थे वो, और वो शास्त्री जी के वहां जाने के फेवर में नहीं थे ताशकंद में। सर वो फोटो दिखाया गया है, वो हुबहू बुखार सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, तो वो है नहीं, कौन या वो अगर आदमी, मुझे पता नहीं कौन किस आदमी को वो सुभाष बोस की शक्ल कहाँ से नजर आ रही है उसके अंदर, भगवान मालिक है। मुझे तो कहीं से सुभाष बोस की शक्ल उसमें नजर नहीं आती। कोई भी आदमी चश्मा पहन लेगा और उसके बाल उड़ जाएंगे, सुभाष बोस हो जाएगा। मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा। मैंने सुभाष बोस को नहीं देखा, लेकिन उनके मैंने परिवार के लोगों को देखा है। सबकी शक्लें ऐसी हैं। ज्यादातर लोगों की शक्ल सुभाष बोस की माँ पे गई है। यू कैन मेक आउट, कहीं दूर दूर से उसका कोई शक्ल का कोई सुभाष बोस से मेल नहीं है। वो उस आदमी ने, वो मैं कभी प्रेजेंटेशन करूंगा उस पर, क्यों करा क्या, वो अलग कहानी है। वही दावा सर जिस मैं आदमी ने दावा किया था कि शक्ल मिलती है, उसने इंग्लैंड से किया था, तो यहाँ लोगों ने सीरियसली ले लिया उसको, क्योंकि इंग्लैंड से बोल रहा ठीक ही बोल रहा होगा। वही अगर दावा कोची से किया होगा तो कोई सवाल भी पूछेगा भी नहीं, उसकी कोई इंटरेस्ट देगा नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं देगा कोई। एक तो प्रॉब्लम है कि कुछ भी चीज़ आप फॉरेन कंट्री से कर दो, खासकर यूरोप से, अमेरिका से, तो लोग बहुत सीरियसली उसको लेते हैं, चाहे वो सच हो झूठ हो, अलग कहानी है। ये तो मेरा मानना है कि वो स्टोरी जो है पूरे इशू को कंफ्यूज करने के लिए फैलाई गई है। वो ताशकंद की जो फोटो है, दैट इज नॉट सुभाष बोस। शक्ल तो मिलती नहीं गई बिल्कुल भी इससे, है ना। और सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस जो है, हाँ यस सर, सुभाष चंद्र बोस जो है जापान में यहाँ से बहुत सारा ट्रेजरी ले गए थे, खजाना ले गए थे। हाँ, उसका हुआ क्या उसका? नहीं, वो ले नहीं गए थे, उन्होंने वहां जाके रेस किया था पैसा। जो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी इंडियन कम्युनिटी थी, कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया। लड़ाई लड़नी है, पूरी गवर्नमेंट बनाई है, तो पैसा फंड होना चाहिए। तो उनके बैंक थे, ये था, तो उन्होंने पैसा रेस किया, अपना पैसा उनके पास था। उसमें से जो ट्रेजर के कहते हैं कि उसमें से जो उनका गोल्ड ज्वेलरी डायमंड्स वगैरह थे, वो 90 किलो के आसपास था। तो वो जो उनकी आखिरी कहानी जो सरकारी फाइलों से अगर मैं देखी जाए, और जो गुमनामी बाबा ने बोली है, वो काफी मैच करती है कि वो अपनी आखिरी जब फ्लाइट में गए थे तो उनके पास में वो था, लेकिन फ्लाइट चढ़ने से पहले काफी कुछ वो छोड़ गए, थोड़ा सा साथ में ले गए। तो जो साथ में गया था, वो कहते हैं जला जुला कुछ बचा है 10-12 किलो, वो आपके दिल्ली के में ये गवर्नमेंट 1956-55 में लेकर आ गई थी चुपचाप से। लेकिन जो बाकी माल गोल हुआ है, वो चोरी कर लिया बहुत लोगों ने। तो उसमें 3-4 आईने के लोग थे या फिर नहीं आईए नहीं, तो इंडियन, एक सुभाष बोस के साथ था, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का आदमी था, एक वो जापानी का नाम आता है और एक अंग्रेज का नाम आता है, 4-5 लोगों का नाम आता है। वो नाम सबके क्लियर है, उनके पूरे खानदान का चिट्ठा पड़ा मेरे पास में। और उस पे फिर इंडिया गवर्नमेंट ने उस पे कुछ नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। एग्जांपल में आपको इसी में समझ में आ रहा है, एग्जांपल देता हूँ कि उसमें से एक आदमी जिसका नाम आ रहा है, जो कल्प्रिट नंबर 2, एस.ए. अय्यर। एस.ए. अय्यर सुभाष बोस का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था वो, ठीक है, उसका नाम आ रहा है। अय्यर जो है, उसके बाद में जब 45 के बाद में आकर के वो पंडित जी के पैर छू दिए उसने। फिर उसको बॉम्बे गवर्नमेंट के अंदर उसको नौकरी मिल गई, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाली कोई। उसके बाद में उसको प्रधानमंत्री के ऑफिस में जब रिपोर्टों में उसका नाम लिख लिख के आ रहा है कि इसने ये भी लूट में हिस्सा है इसका, पंडित जी ने उसको प्रधानमंत्री के ऑफिस में नौकरी दे दी। पंचवर्षीय योजना का वो पब्लिसिटी इंचार्ज था वो। जब आपको मालूम है कि आदमी चोर है, तो चोर को तुमने नौकरी क्यों दी तुमने यहाँ पे? फिर चोर को बोला कि तू इंक्वायरी कर सुभाष बोस की डेथ के बाद। पहली इंक्वायरी उसने की थी चोर ने। चोर क्यों इंक्वायरी करेगा? तो तू तो चोर है। उसका पूछो पैसा कहाँ गया। तो ये तो बहुत बड़ा कांड हो रहा है पंडित जी के खिलाफ में। उसका एक लड़का अमेरिका में है, प्रोफेसर अमेरिका में। एक और आदमी ने पैसा खाया था, उसके बच्चे हम टोक्यो में रेस्टोरेंट चलाते हैं। तीसरा अंग्रेज है, वो सर बन गया था, सर जॉन फिगिस। वो भी काफी नोट छाप साहब बन गया वो। फ्यूचर में कभी भी ये बात अगर उठेगी तो इससे बहुत सारे लोग अब साबित रिकॉर्ड पे नाम आ गया। वो एक चोर के लड़के ने मुझसे पूछा था फेसबुक में कि आप ऐसे, मैं नहीं बोल रहा, आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मुझे गाली क्यों देता भैया? मैं नहीं कह रहा, मुझे क्या पता, मैं तो तेरे बाप को कोई देखा नहीं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर लिखा है। वो सेफ है, सारे भाग गए, यूएस पहुंच गए। वो आपको, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसका उस पर इंक्वायरी करना पॉसिबल है। बट आपको मालूम है कि वो चोर कौन है, उन चोर के बच्चे कौन है, और उन चोरों के बच्चों के याद नेताजी की फैमिली के अंदर भी है।
एक बड़ी कमाल की बात है। हाँ, सारी दुनिया को मालूम है कि ये चोर, इसके बाप ने पैसा माल मारा है, लेकिन उसका जोड़ीदार जो है सुभाष बोस की फैमिली के लोग हैं। ये कहानी है। ठीक है, चलो, गुड नाइट टू यू एंड टू एवरीबॉडी आल्सो। चलो, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप अनफॉर्चुनेटली मान लो आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले से ये बोल रहा हूँ कि अब मैं ये 1 घंटा करूंगा। आज मैंने 1 घंटा 20 मिनट कर दिया, क्योंकि हो क्या रहा है कि वो 2.5 घंटे बोलने से फायदा नहीं हो रहा, लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन मैं रेगुलरली करूंगा, जैसे कल भी मेरा आने का प्लान है। शायद कल अगर मेरा मौका लगा तो मैं अपने तिलक दत्ता जी जर्मनी में है, उनसे ज़रा बातचीत करूंगा। उन्होंने किताब लिखी है, फिक्शनल बुक लिखी है हमारे इशू के ऊपर, तो तिलक जी से मैं संवाद करूंगा कल इशू को लेकर के। लेकिन अदरवाइज मेरा प्लान है कि वीक में 3 या 4 दिन मैं बात करूं। तो जैसे बाई चांस आज मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया तो कल परसों में शायद हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन बॉस, एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड टेक केयर।